What is up, India? Welcome to the mega day one of English fluency sessions. What if I tell you that these particular 2 days, chats ko ek bari band kar dena. What if I tell you that these particular 2 days are going to be one of the most significant days of your life in terms of spoken English? Mark my words, if you don't understand English speaking here, you guys are not going to understand it anywhere in the entire world. So each and every second today, which you guys will be spending it with me, is going to be the pure gold. The mode of the communication of this particular session would be the mix of Hindi and English. There would be certain things which I'll be speaking in Hindi and English. पहले तो मुझे बताओ मेरी voice clear है? Let me know. My voice is clear. All set. All set. Great. Video clear. All set. चलो अब फटाफट start करते हैं. And before we begin, let me give you a very short introduction of mine. And before I give you the introduction, एक simple सी चीज ये है. You want to become fluent in English for ages. 10-20 साल हो गए और तुम इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो. बट ऐसा क्यों है यार कि तुम अभी तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाए हो? गोल तो सेट है. Everyone wants to become fluent in English. But the only reason why you guys are struggling because you don't know step by step process. How many of you guys can relate with it? Yes or no? कितने लोग एग्री करेंगे कि यार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता है? और एज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता है तो वी डोंट नो हाउ वी कैन अचीव द गोल. Yes or no? So this particular event of 2 days, I'll be just opening the English language. मैं आप लोगों के सामने English language खोल के रख दूंगा. And the point is, within 2 days, I'll give you the improvement which you guys have never ever felt in the past 10-20 years. How many of you guys are ready for it? मुझे बताओ. How many of you guys are ready to see that particular significant change जो आपने पिछले 10-20 सालों से नहीं देखा है? And now let's quickly begin. चैट्स को मैंने आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए मैंने क्लोज कर दिया है. बट मीनवाइल विल कीप ऑन ओपनिंग इट एंड क्लोजिंग इट अप. सब लोगों का ध्यान शुड बी टुवर्ड्स माय स्क्रीन. राइट, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड I'll give my short introduction so that you should like सबको सारी चीजें क्लियर हो जाएं. Just give me one quick minute. Okay, yeah, here we go. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Great. So guys, my name is Aman Maskeen and I am going to be your English fluency coach. पॉइंट बहुत सिंपल सा है. द क्लियर कट पॉइंट इज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ के थक चुके हैं? मुझे बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर टोटली टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? आई एम नॉट हेयर टू टीच यू इंग्लिश. आई एम हेयर टू मेक यू गाइज फ्लुएंट इन इंग्लिश डायरेक्टली. इंग्लिश पढ़ना नहीं है. पढ़ते पुराने जमाने के लोग थे. हमें डायरेक्टली इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है. And so far, we have made more than 15,000 people fluent in English in the past 28 months. I'm the founder and the CEO of the Elite Talkers. प्लस जितनी भी आज मैं आपको न्यू स्ट्रैटेजीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट वे में, जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं, all those particular strategies have already been awarded by Josh Talk, Ask Tak, India News and all that stuff. And एक सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है कि इस 2 या 3 दिनों में I am going to change your mindset and I will be giving you the confidence. I'm repeating this thing for the last time. I'll be giving you the confidence which you have never felt in the past 20 years. Now let's quickly get started. मेरा विजन बहुत सिंपल सा है. आपको बिना पढ़ा के I'll make you guys fluent in English because तुम पढ़ बहुत चुके हो. बट कितने लोग एग्री करेंगे कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा ग्रामर आती होगी, मुझसे ज्यादा रूल्स पता होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंसी you don't know how to use your knowledge and so that you can speak in English. हाँ या ना? Do you guys agree? Knowledge बहुत है पर implement करना नहीं आता, and that's what I'm going to teach you guys. Don't worry about it. So now let's quickly get started. And ये different क्यों है? Because what if I tell you कि आप लोगों को English अस्त्र, ब्रेन एंड वाटर कंसेप्ट, ताव प्रिंसिपल, हु प्रिंसिपल जैसे कंसेप्ट्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग होती क्या है, राइट? स्मार्ट वोकैबुलरी हैक्स क्या होता है जिससे हम फटाफट इंग्लिश में बोलने लग जाएं, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का फ्लुएंसी सीक्रेट क्या है, एंड इवन क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, व्हाट टू डू, ऑल दीज थिंग्स I'll be taking care of, and these are going to be my pictures. I'm a twice a Josh Talk speaker. Ask Tak, India News like have awarded me. Malaika Arora, Mandira Bedi, Irfan Pathan, all these big celebrities have mastered English language. हम लोगों का थोड़ा influence रहा है, and वो का वही influence I would love to give you guys. And these are going to be certain pictures of me with Irfan Pathan and all that. I'm like this is the way. But I'm not here to show off my achievements, guys. Simple सी बात ये है, मेरी achievements are of no use
if I cannot show you or if I cannot bring the results? Yes or no? Start करें, मजा आने वाला है, excited? So am I. चलो, start करते हैं. Guys, the funda is very simple, right? The funda is very simple. So the funda is, in these particular 2 days, I will be taking care of your theory part as well and plus the practical part as well. Yes or no? Theory भी करेंगे and practical भी करेंगे. कैसे करेंगे? First of all, I'll let you know कि fluency is not what you think. आप लोगों को लगता है कि fluency मतलब लगातार बोलना. To be honest, fluency का वो मतलब नहीं होता. क्या मतलब होता है? I'm gonna let you know. Plus, what should be your first step? कि भाई इंग्लिश में करना क्या है? What should be the first step? And as per the level, आपका लेवल चेक होगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल द लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज आई विल बी लेटिंग यू नो. ये जितनी भी ये जो तुम्हारे ओल्ड रूल्स होते हैं ना, ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट चीजें, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज जस्ट गिव मी अ सेक इफ आई हैव दैट पर्टिकुलर पेज विद मी, राइट? ठीक है, जैसे गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड इट. चलो, अभी वो पेज मेरी टीम दे देगी. या ये मिल गया एक पेज. आपको क्या लगता है दिस इज व्हाट इंग्लिश इज ऑल अबाउट? रा है, री है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ये इंग्लिश का मतलब नहीं होता. कैसे करना है? शॉर्टकट मेथड से. आज ही रिजल्ट्स दिखेंगे. दैट्स व्हाट आई विल बी लेटिंग यू नो. वोकैबुलरी मास्टरी एंड फ्लुएंसी सीक्रेट्स ऑफ द एक्टर्स, दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग. एंड हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस ऑफ द कॉन्वर्सेशन. डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि यार सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है. बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक. व्हाट शुड बी योर, वो ट्रिक क्या होती है, वो मैजिक क्या होता है? आई विल बी लेटिंग यू नो. प्लस हाउ टू फिनिश स्पीकिंग एंड राइटिंग विद जीरो एरर्स. यार स्टार्ट तो कर देता हूं बट जब मैं खत्म करता हूं ना तो क्या होता है, बहुत गलतियां करता हूं मैं. हाउ यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. प्लस आई विल बी मेकिंग यू डू द लाइव प्रैक्टिस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस एंड आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए. प्लस द पीपल दोज विल बी परफॉर्मिंग बेस्ट. इन 2 दिनों में हम 250 लोगों से ज्यादा को सिलेक्ट करेंगे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एंड इवन हमारी तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप. सो दैट्स गोइंग टू बी द इंटायर, यू नो, दैट्स गोइंग टू बी द इंटायर जर्नी विच विल बी वॉकिंग टुगेदर. सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, ठीक है. सबको ये चीजें समझ में आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल? यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. एंड एक चीज और है, आई हैव जीरो हेजिटेशन इन लेटिंग यू नो कि क्या आप इन 2 दिनों में फ्लुएंट हो जाओगे. द आंसर इज बिग नो. बिकॉज अगर 2 दिनों में इंग्लिश में हम लोग फ्लुएंट बना देते, दो वी आर टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर एम, तो अभी तक हम पूरे इंडिया को फ्लुएंट बना चुके होते. बट इन 2 दिनों में आई एम गोइंग टू चेंज योर इंटायर. आपके मेथड्स ही गलत हैं यार, तुम पुराने मेथड से पढ़ रहे हो. पढ़ना है ही नहीं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है. दैट्स व्हाट आई विल बी लेटिंग यू नो. एंड मुझे आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं चाहिए. I just need your 60 to 75 minutes, and I think that would be more than enough. I don't need much time of yours. Today's session will run till 8:20 p.m. Tomorrow it will run till 9 p.m. कल live आ जाना 6:45 p.m. पे. And from the day 3 onwards, we guys are going to start with a step-by-step practical execution. That's going to be the planning. चलो, अब directly start करते हैं. Okay, you all are here. You all are here to become fluent in English. Wow. एंड आप सब लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये होगा कि अमन, इंग्लिश में मैं क्या करूं एंड कैसे करूं. डू यू गाइस एग्री? यस और नो? यही है ना? दिस इज व्हाट द एम इज, दैट अमन, हाउ आई कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, व्हाट टू डू टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स वुड बी टोटली यूजलेस अगर आपको और मुझको आपके लेवल के बारे में नहीं पता. यस और नो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक योर लेवल, right? First of all, I'll check your level and then I'm going to let you know what you need to do and how you need to do. Simple सी बात ये है. लेवल चेक करने से पहले ना मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताना चाहता हूं and you guys are going to love it. चलो अब स्टार्ट करते हैं. देखो, you guys want to speak in English fluently and इंडिया में जिसको भी इंग्लिश फ्लुएंटली बात करनी होती है ना, तो हमें एडवाइस दी जाती है, अरे ज्यादा से ज्यादा बोलो. यस और नो? कितने लोग रिलेट करेंगे? दिस इज व्हाट वी हैव बीन told so many times कि इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बोलो. एंड जैसे ही मैं बोलने की ट्राई करता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट दैट दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स, है ना? कि हमें फियर आ जाता है, हेजिटेशन आ जाता है, फंबल है, क्लटर्ड माइंड है, वर्ड्स आते ही नहीं एंड हम स्टक हो जाते हैं. And जब ये सारी की सारी चीजें आपने कभी सोचा ये क्यों आती है? मैं पहले आपको रीजन बताऊंगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा. राइट? ऐसा क्यों है यार?
The more you speak, the more fear you have, the more hesitation you have. Like जब ज्यादा stuck हो जाते हो, your mind is totally blank. Logic is very simple. Imagine a fact that I want water. अब ना यार मुझे पानी पीना है, right? I need water. And आप मेरे साथ किचन में आओ, इधर आओ. अब क्या हुआ कि मुझे पानी पीना है. Open the tap. I open the tap. Water came. But यार एक चीज हुई कि ये जो water है ना, ये 2 minutes बाद आना बंद हो गया. What could be the reason? मुझे बताओ. टैप से 2 मिनट बाद पानी आना बंद हो गया. व्हाट कुड बी द रीजन? यस और नो? लेट मी नो व्हाट कुड बी द रीजन. एवरीवन लेट मी नो. एंड बीच बीच में हम चैट्स को बंद करते रहेंगे, ठीक है, एंड ओपन करते रहेंगे. क्विकली क्विकली सब लोग मुझे बताओ. यस, एब्सोल्युटली, टैंकी खाली है. And it basically means the water tank is totally vacant, and that's exactly what is happening with you. Imagine करो ये तुम्हारा ब्रेन है, एंड इमेजिन करो कि ये जो टैप है ये तुम्हारा माउथ है, and this particular water is your English. How many of you guys can relate with it कि आपके दिमाग में करेक्ट इंग्लिश इतनी ही है, आपको पता ही नहीं सही इंग्लिश होता क्या है, एंड आप जितनी बोलने की कोशिश करते हो 2 मिनट के लिए तो इंग्लिश बाहर निकलती है, एंड उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट कमिंग आउट. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यस और नो? दिमाग खाली है. ज्यादा बोलने से कभी किसी को कुछ नहीं आता. We need to see what exactly we want. So my logic is very simple. यार वाटर टैंक को पहले फिल करते हैं, अपने आप को मैं पहले आपको करेक्ट करता हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा कि जितना मर्जी चाहो लिख सकते हो, जितना मर्जी चाहो बोल सकते हो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर इट? टैंकी खाली है बॉस. ज्यादा बोलने से कोई फ्लुएंट नहीं होता. क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है, क्वांटिटी नहीं. नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. चैट्स को बंद करो. लास्ट वन, फाइनल वार्निंग. नाउ द क्वेश्चन इज, तुम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश में करेक्ट नहीं है. अब मैं तुम्हें बताता हूं इंग्लिश में करेक्ट होना कैसे है, एंड यू विल बी टोटली माइंड ब्लोन. सो द पॉइंट इज, पहली चीज आज के सेशन की मुझे क्या पता चली है, राइट? आज की पहली चीज मुझे क्या पता चली है कि अगर मेरा ब्रेन खाली है, अगर मेरा ब्रेन खाली है तो मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता. फटाफट सब लोग अपने अब नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे हमें इंग्लिश आ ही नहीं सकती. फटाफट सब लोगों ने अपनी नोटबुक निकाल ली है, यहां से कुछ सीख के जाओगे. सबसे पहला पॉइंट सब लोग लिखो, राइट? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं. फटाफट सब लोग अपने नोट्स में ये चीज लिखो कि बिगेस्ट मिस्टेक इज माय ब्रेन इज एम्प्टी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक. अब इसका करेक्शन क्या होगा? फर्स्ट आई विल फिल माय ब्रेन विथ करेक्ट इंग्लिश, देन आई विल ओपन अप माय माउथ टैप. समझ में आया? सब लोगों को ये अपने नोट्स में लिखना है. सब लोग लिखो एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स I1 लिखो, बिकॉज इट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट 1. एवरीवन क्विकली डू इट. सब लोग, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो. I1 लिखो सब लोग. अगर ये चीज समझ में आ गई है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो I1 लिखो, फटाफट लिखो. डन. एक पॉइंट समझ में आया. सबसे पहला पॉइंट, दिमाग खाली है और मैं बोलने की कोशिश करता हूं. ये बिगेस्ट मिस्टेक है. पहले दिमाग भरना है, फिर ओनली आई कैन ओपन अप माय माउथ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि यार करेक्ट इंग्लिश में होते कैसे हैं. सबको ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से हम आगे ग्रो करते रहेंगे. नाउ द पॉइंट इज कि यार इंग्लिश में करेक्ट कैसे होते हैं. फंडा बहुत सिंपल सा है बॉस. इंग्लिश में अगर तुम्हें बोलना या लिखना है, द फंडा इज वेरी सिंपल. Anything you want to write or speak in English, how many of you guys agree कि यार ग्रामर पढ़ने से कुछ नहीं होता. Ultimately you should just know how to start a sentence and how to finish a sentence. Yes or no? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ या ना? मुझे बताओ कि मुझे पता ही नहीं इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना है, मुझे पता ही नहीं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस खत्म कैसे करना है. तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, एंड आई एम गोना टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस एंड हाउ टू फिनिश इट विद 0 एरर्स. देखो यार बहुत सिंपल सी चीज ये है. करना क्या है? 3 चीजें करनी है एंड इंग्लिश विल बी सॉर्टेड. एवरीवन कम ओवर हियर. सिर्फ 3 चीजें करनी है हाउ टू बी करेक्ट इन इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए. अगर आप कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, यू शुड नो दीज कंसेप्ट्स. अगर आप इंग्लिश को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस पता होना चाहिए. कितने लोगों को डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस के कंसेप्ट के बारे में पता है? मुझे बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस
have an idea of this particular time and this particular thing. Key technique and time and sense. फटाफट बताओ, नहीं पता? यही रीजन है you guys are struggling in English. मैं आपको बताऊंगा अभी 5 मिनट के अंदर अंदर, and you guys will be totally blown away within 5 minutes के अंदर अंदर. सबको समझ में आया? देखो यार, एक सिंपल सी बात है, इंग्लिश में स्टार्ट एंड फिनिश you should know, and in order to start you should know what is D technique and time and sense, and in order to finish you should know formation sheet. कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस तुम्हें बोलना है या लिखना है, within 2 seconds में you guys will be able to write and speak. How many of you guys want to see this particular technique? कितने लोग ये मैजिक सीखना चाहते हैं? मुझे बताओ, कितने लोग ये मैजिक सीखना चाहते हैं? आई नो स्टार्टिंग में आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे, स्टार्टिंग में आप 2 मिनट में कर पाओगे अभी मेरे साथ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा 2 सेकंड में कैसे करना है. रेडी हो? करें, स्टार्ट करें. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. ये डी टेक्निक है, टाइम एंड सेंस है, एंड लाइक दिस इज व्हाट द फॉर्मेशन शीट इज. डी टेक्निक में जाने से पहले ना, सब लोगों को ये चीज समझ में आई है, सब लोग I2 लिखें. इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट. ये दिमाग हिला क्या कि ग्रामर करनी नहीं है? ग्रामर करना नहीं है. दूसरा लर्निंग क्या हुआ कि ग्रामर नहीं करना. व्हाट इज द लर्निंग? टू मेक माई इंग्लिश करेक्ट आई शुड नो हाउ टू स्टार्ट एंड फिनिश. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है. और टू स्टार्ट अ सेंटेंस I must know the magic of D technique and time and sense. And to finish every sentence in English, I should know the trick of formation sheet. अपने नोट्स में लिखो, फटाफट लिखो. Important learning 2, I2. सब लोग I2 लिखो in the chat box. क्या सीखने को मिला कि भाई इंग्लिश के लिए I should know how to start and finish. स्टार्ट के लिए मुझे डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस मालूम होना चाहिए, एंड फिनिश करने के लिए आई शुड नो द ट्रिक ऑफ द फॉर्मेशन शीट. इतना समझ में आ रहा है? फटाफट ये मैं तुम्हारे नोट्स बना रहा हूं, इसका मुझे स्क्रीनशॉट. इंप्रूवमेंट, आई मींस इंप्रूवमेंट, आई मींस इंपॉर्टेंट. एवरीवन शुड राइट इट. चलो, अब मैं आपको लेके चलता हूं की टेक्निक के मैजिकल कंसेप्ट में. इधर आओ, फटाफट सब लोगों का ध्यान इधर देखो गाइस. इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, तुम्हें डी टेक्निक लगानी है. एंड डी टेक्निक का मतलब क्या होता है? दिस इज व्हाट डी टेक्निक मींस. नाउ आई नो यू हैव नो आइडिया ऑफ द डी टेक्निक, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डी टेक्निक. यार, तुम कुछ भी लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो ना, सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पाते, डी टेक्निक लगाओ. कैसे? सीखो, ट्रिक सीखो. अब डी टेक्निक का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू लुक फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपको पहले उसको कंप्लीट करना है. मैं आपको सिखाता हूं. सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार डी टेक्निक का मतलब क्या हुआ. डी मतलब ये होता है अल्फाबेट ABCD. अब इस डी को ना लिटा देते हैं, लाइक लेट्स मेक इट इन अ स्लीप पोजीशन. कोई भी सेंटेंस आ जाए, यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस एंड यू जस्ट नीड टू कम बैक. ये एक स्लीपिंग डी लग रहा है? यस और नो? ये हैक सीखो, आज से इंग्लिश में फ्लुएंट बनोगे. इट्स गोइंग टू बी दैट क्विक, राइट? सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग, एनी सेंटेंस, अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देके भी बताऊंगा. any sentence you want to speak, you just have to go like this and you just have to come back. अब ये जो पिक्चर है, डी जैसी लग रही है, इस टेक्निक का नाम डी टेक्निक है. अब इस डी टेक्निक को करना कैसे है देखना. योर माइंड इज गोइंग टू बी लाइक, इट विल बी गोइंग टू ब्लो योर माइंड. जैसे ये एक सेंटेंस है, अब सुनना मैं टेक्निक्स कैसे करता हूं. देखो, अब ये सेंटेंस है, मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं. इमेजिन अ फैक्ट, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि इस सेंटेंस को लिखना है या बोलना कैसे है. लुक एट माई टेक्निक, व्हाट आई हैव टोल्ड यू. पहले डी टेक्निक लगाना है. डी टेक्निक मतलब वी नीड टू लुक फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के रूट सेंटेंस को पकड़ना है. आप ऐसे सीख लो, सेंटेंस के रूट सेंटेंस को पकड़ना है. कैसे? मैं आपको सिखाता हूं. देखो, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूं. मैं लाया हूं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? क्योंकि डी टेक्निक क्या थी? ऐसे जाना है, ऐसे जाना है. अब समझना, ऐसे जाना है, वी जस्ट हैव टू कम बैक. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे विद दिस थिंग कि मैं लाया हूं इज द कंप्लीट सेंटेंस? यस और नो? हाँ या ना? मैं लाया हूं इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अब चाहे मैं लैपटॉप लाया हूं, स्कूटर लाया हूं, लाइक गाड़ी लाया हूं, आई डोंट केयर. मैं लाया हूं इज अ कंप्लीट सेंटेंस. अब आप मैजिक देखना, हाउ आई विल बी मेकिंग यू गाइस फ्लुएंट इन इंग्लिश. वेरी सिंपल सॉर्टेड मेथड. अब इधर देखना, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूं. मैं लाया हूं, आई स्टार्ट राइटिंग नाउ. हाउ? मैं लाया हूं विल बिकम आई हैव, आई हैव ब्रॉट. अब यहां पे हैव क्यों आया ये बाद में बताऊंगा, बट अभी आप ये देखो कि मैं सेंटेंस को कर कैसे रहा हूं. मैं लाया हूं,
आई हैव ब्रॉट, ग्रेट। अब डी टेक्निक क्या थी? अरे ऐसे जाना है एंड वापस आना है। यस और नो? डी टेक्निक क्या सीखी थी? वी जस्ट नीड टू गो हियर एंड वी जस्ट नीड टू कम बैक। अब देखो हम यहां चले गए हैं, मैं लाया हूं। नाउ वी जस्ट नीड टू कम बैक। हाउ? मैं बताता हूं। मैं लाया हूं, आई हैव ब्रॉट। अब यहां पे वापस आते हैं, एक नया लैपटॉप। You guys already know the English of this. Let's write it like this way. Right. I have brought, अब देखो, a new laptop. Wow. मेरा sentence अपने आप बन रहा है. I'm not using any rules. I'm just using the magic of D technique, and that's what you all should know about. That's what India should know about. देखो, I have brought a new laptop. अब वापस आते हैं. Right. क्या लिखा हुआ है? रवि सर के लिए। अब रवि सर के लिए कि इतनी इंग्लिश इजी आसान होती है। फॉर रवि सर whom I have made my first correct sentence. How many of you guys loved it? मजा आया? फायर है या नहीं है? मुझे बताओ। How many of you guys loved it? क्या किया? Did we use any rules and all that? The answer is big no. So write it down the notes, guys, because we need to be quick. अगर तुम तेज नहीं, तुम पीछे रह जाओगे। How many of you guys want to see the magic? मैंने क्या किया? दोबारा समझते हैं। यही सेंटेंस दोबारा समझते हैं। English is not a rocket science. How you approach it, that's the beauty. चलो फटाफट अब एक और बारी मैं यहीं पे आपको बताता हूं। देखो यार, इस दुनिया का, एंड व्हाट इफ आई टेल यू, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस ऐसे हो सकता है। सब लोगों का ध्यान मेरी स्क्रीन की तरफ, बिकॉज इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, मैंने आपको क्या बोला था? इफ यू डोंट लर्न इंग्लिश हेयर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश हेयर, इंग्लिश गई इस जन्म में तो गई। यहां नहीं सीखोगे, कहीं नहीं सीखोगे। यहां बदलाव, आपका जिंदगी का बदलाव है। इधर आओ, देखो मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया हूं। सब लोगों को ये चीज समझ में आई। मैं एक नया सेंटेंस लेके समझाता हूं, बट बिफोर चलो अब एक और सेंटेंस करते हैं। अब देखो, आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर रवि सर। इन शॉर्ट एक डिजाइन करके बताऊं, यू गाइस आर गोना लव इट। देखो सबसे पहले क्या आएगा? मैं लाया हूं। क्योंकि मैं लाया हूं इज अ रूट सेंटेंस, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? आई हैव ब्रॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर एज मुझे वापस आना है, तो मैंने क्या लिखा? एक नया लैपटॉप। नाउ सेम इंग्लिश, अ न्यू लैपटॉप। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव दिस फैक्टर? कलर वाइज समझो। उसके बाद रवि सर के लिए आई हैव रिटन एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर रवि सर। मजा आया? अंडरस्टैंड, राइट? अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑफ लैंग्वेज। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? एंड अभी मुझे पता है तुम लोग इसकी टेंशन ले रहे हो यार, कि हैव क्यों आया। अभी इसकी टेंशन छोड़ो, सब पढ़ाऊंगा। पहले एक बारी ऊपर से स्ट्रक्चर तो समझो। लव्ड इट? लव्ड इट। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस नंबर 2। अब देखो सेंटेंस का लेवल टफ करते हैं। सेंटेंस का लेवल टफ करते हैं, और मैं तुम्हारे अभी नोट्स भी बनाऊंगा। एंड वुड यू गाइस माइंड कि मैं एसी चला लूं, बिकॉज आई एम ऑल स्वेटी, बिकॉज इतनी हीट बढ़ चुकी है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी स्विच ऑन द एसी, जस्ट एक। चलो स्टार्ट करें। ओके, नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। चलो here we go. Right, okay, black screen. Okay, now let's make it right, like let's make it white. चलो स्टार्ट करें। अब एक और सेंटेंस करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस। राज एंड प्रिया कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ फ्लाइट लेंगे। बड़ा सेंटेंस है, मैं नहीं कर पा रहा, तुम लोग कर पाओगे। डी टेक्निक लगाते हैं। राज एंड प्रिया, राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री इट्स अ रूट सेंटेंस? डी टेक्निक लग गई ना? राजेंद्र प्रिया फ्लाइट लेंगे। अब कल के लिए लेंगे, परसों के लिए लेंगे, लंदन के लिए लेंगे, आई डोंट केयर। रूट सेंटेंस पकड़ लें। रूट सेंटेंस बहुत सिंपल है यार, ऐसे करना है रूट मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये है। अब राजेंद्र प्रिया फ्लाइट लेंगे। अब लुक, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इट। अब एक, लेट मी जस्ट गिव मी जस्ट वन क्विक मिनट। इसको ब्लैक करते हैं, अब आप समझना। राज एंड प्रिया विल विल टेक फ्लाइट। कोई दिक्कत? राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट। कोई इशू? राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे। राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट। अब वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ। अब आप देखना मैं कैसे करूंगा। वापस ही तो आना है, मेरे साथ। मेरे साथ की इंग्लिश क्या होगी मुझे बताओ? विद मी। वाओ, इंग्लिश इज सो सिंपल। एक सेट और हो गया। लंदन के लिए, इजी, फॉर लंदन। For London. English cannot be so much easy, huh?
कल सुबह। अरे कल सुबह की इंग्लिश भी नहीं आती क्या तुम्हें? आती है। कल मीन्स टुमारो, राइट? It's going to be tomorrow morning, and that's the way you guys need to master this English language. As simple as that. मजा आया? How many of you guys loved it? It could be tomorrow morning. And आपको मैं एक चीज और बताऊं, when you guys write in English, right? ठीक है, अब आप समझना, right? When you guys write and speak in English, क्या होता है? जब आप लिखते हो इंग्लिश, जब आप बोलते हो, आप लोग ना कंफ्यूज रहते हो कि यार विद मैं आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं, फॉर लंदन इधर लिखूं या फॉर लंदन यहां लिख दूं। डू यू गाइस एग्री? ये प्रॉब्लम आती है नहीं आती? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये प्रॉब्लम आती है ना कि यार मैं फॉर लगाऊं या फॉर पहले लगा दूं या विद पहले लगा दूं। अरे टुमारो से सेंटेंस स्टार्ट करूं, कहीं ये सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता था, राज एंड प्रिया टुमारो विल टेक फ्लाइट, ऐसा भी तो हो सकता था। अब विद मी यहां आ जाता, बट नहीं, हम कंफ्यूज रहते हैं ना। डी टेक्निक ने वो कंफ्यूजन ही दूर कर दी है, क्योंकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप है। मैं लाया हूं एक नया लैपटॉप रवि सर के लिए, सेम गोज विद दिस पैटर्न एज वेल। अब समझना व्हाट आई हैव रिटन, दोबारा समझो, राइट? क्विकली, इजीएस्ट वे में। अब देखो क्या है, राज एंड प्रिया, अब आप देखना, फ्लाइट लेंगे। दिस थिंग हैज बीन टेकन केयर बाय दिस, राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट, कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे साथ, लेट मी मेक इट इन अ ब्लैक कलर, मेरे साथ becomes with me. Now the next thing, understand it, ये बेस है, ग्रामर बेस नहीं होती, स्ट्रक्चर्स बेस होते हैं। लंदन के लिए, फॉर लंदन, हाउ इजी इट इज लुकिंग। नाउ द नेक्स्ट कलर, कोई फेवरेट कलर है क्या तुम्हारा? चलो येलो ले लेते हैं। कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, बूम, लव्ड इट। मजा आया? यस और नो? आया समझ में? और इसकी टेंशन मत लेना कि ये विल कैसे आया, इसके लिए तुम्हें रूल्स नहीं पढ़ने। किसी को लग रहा है कि ये पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, नॉट रिक्वायर्ड। अभी सारे मैजिक अभी देखोगे क्या? राइट, अभी बहुत टाइम देना है। राइट, दिस इज व्हाट इट इज। लव्ड इट, मजा आया? एक और सेंटेंस करोगे? एक और सेंटेंस करते हैं इसी मेथड से, बूम। अब देखो, मैं तुम सबको फ्लुएंट बनाने के बाद ही रेस्ट लूंगा। तुम्हारा क्या होता है, व्हाई डी टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग। तुम्हें स्टार्ट मिलती है। अब जब तुम सेंटेंस देखते थे तुम्हें लगता था यार मैं कैसे करूं, बट अब एक स्टार्ट है। अच्छा, मैं तुम सबको फ्लुएंट बनाने के बाद रेस्ट लूंगा, ओ ठीक है, मैं रेस्ट लूंगा। वाओ, इट इज इजी। देखा ना मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ये लास्ट सेंटेंस है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, फिर डिटेल में मैं आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा और तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। तो अभी सीख लो, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर तुम लोग करोगे, बिकॉज तुम्हें आ ही जाएगा। इट्स गोइंग टू बी एज सिंपल एज दैट। मैं रेस्ट लूंगा, आई विल आई विल टेक रेस्ट, इजी है। वही चीजें अब वापस आना है, राइट? क्या है, बनाने के बाद वुड बी, आफ्टर मेकिंग। अब आप टेंशन मत लेना कि यहां पे आफ्टर क्यों आया, विल क्यों आया। अभी स्ट्रक्चर समझो। अभी आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू कि मैं कैसे कर रहा हूं। मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। अब यहां ऑन क्यों आया या इन क्यों आया, डोंट वरी। बनाने के बाद आफ्टर मेकिंग, तुम सबको फ्लुएंट। अब तुम सबको फ्लुएंट की इंग्लिश क्या होगी? वेरी सिंपल, यू ऑल, यू ऑल फ्लुएंट, दैट्स इट। तुम सबको फ्लुएंट वुड बी यू ऑल फ्लुएंट, राइट? अब देखो मैं इस तरीके से बोलूंगा, हे गाइस, माय नेम इज अमन मस्कीन, I will take rest after making you all fluent in English. How many of you guys can relate with it? Maza aaya? Look at the way I'm speaking. Hey guys, my name is Aman Maskeen. I'm going to take rest after making you all fluent in English. Look, this is so easy. बोलने में आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। Hey guys, my name is Aman Maskeen and I welcome you to the India's best workshop because I'm going to make you fluent in English. Look, कितना simple लग रहा है। Like I will take rest after making you all fluent. थोड़ा इसको अच्छा बनाना है, in English भी लिख दो। This is what English language is. English language को पढ़ना नहीं है, directly implement करना है। How many of you guys are blown away? अभी अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट है, बिकॉज हमें कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स देने हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे, राइट? कितने लोगों की वो फीलिंग आ रही है अमेजिंग वाली, मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फीलिंग अमेजिंग? लिखो I3, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, चैट्स ओपन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फीलिंग अमेजिंग?
I3 लिखो और ये रहे तुम्हारे अब नोट्स। देखो लेजेंडरी डी टेक्निक सीखी है, लेजेंडरी डी टेक्निक सीखी, और यहां पे आप ये भी लिख दो टू स्टार्ट, लाइक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके ओके, गिव मी अ मिनट, मैं इसको बैक कर देता हूँ। राइट, अब आप सीख लो। लिखो I3 में लिखो लेजेंडरी डी टेक्निक, और इसके नीचे टू स्टार्ट भी लिख देना। मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख देना, ठीक है? करें? 3 पॉइंट समझ में आए हैं? थोड़ा रिवीजन कर लें। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि मेरा दिमाग खाली है और मैं इंग्लिश बोलने की तरफ जाता हूं, टोटल बेवकूफी। पहले मुझे अपना ब्रेन फिल करना है। अब यार ब्रेन फिल क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि मैं बोल पाऊं। बोलने के लिए, लिखने के लिए मुझे स्टार्ट एंड फिनिश आना चाहिए। स्टार्ट के लिए आई शुड नो द डी टेक्निक। समझ में आया? यस और नो? लेजेंडरी डी टेक्निक चाहिए टू स्टार्ट। लव्ड इट। I3 क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट 3 क्लियर हुआ। चलो अब I4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है नाउ। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हें हमेशा समझ में आएगा। फटाफट लोग स्क्रीनशॉट लो। ये जो मैंने तुम्हारे नोट्स में बनाया हुआ था ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। I3 का है ये I3 है तुम्हारा। I3 मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट 3। स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सोल्यूशन मिला? कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट करना है, नहीं आ रहा, डी टेक्निक लगाना है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना। लव्ड इट। चलो नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। I4 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके छोटे हिंट्स हैं। ज्यादा बुक्स वुक्स नहीं पढ़नी, यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी, पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप लोगों के लिए नोट्स मैं ऑलरेडी बना रहा हूं, ठीक है? तो सब लोग अपनी नोटबुक पे जो जो मैं लिखने के लिए दे रहा हूं लिखते रहें, राइट? सीखते रहें क्विकली। चलो हियर वी गो नाउ। अब हम लोगों ने डी टेक्निक तो सीख ली है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर सुपर एक्साइटेड टू नो अबाउट टाइम एंड सेंस? कितने लोग एक्साइटेड है टाइम एंड सेंस के बारे में जानने के लिए? गाइस अब ना मैं आप लोगों को एक ऐसी, कितने लोग पावरफुल होना चाहते हैं मुझे बताओ? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू बी पावरफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज? लेट मी नो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल इन इंग्लिश लैंग्वेज? लेट मी नो। यू गाइस वांट टू बी? अब ना व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम बचपन से ना ग्रामर 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 करते हो, हाँ या ना? मैं भी करता था। बट मैं आपको आज के 2024 के जमाने की एक बेस्ट हैक, एक टेक्निक बताऊं। आपको पता है जब हम लोगों ने ग्रामर के ऊपर रिसर्च किया ना, तो पता है क्या निकल के सामने आया? रिसर्च करने के बाद ये चीज निकल के सामने आई कि आप ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, चाहे वो टेंसेस हैं, चाहे वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, चाहे वो वॉइस है, चाहे वो नरेशन है, उन सब कंसेप्ट्स की हमें जरूरत ही नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? हाँ उन सब कंसेप्ट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे कंसेप्ट्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। यू जस्ट शुड नो द टाइम ऑफ अ सेंटेंस एंड द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, दैट्स इट। अगर तुम्हें किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का टाइम एंड सेंस पता है, तुम्हें कोई भी ग्रामर रूल की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम ग्रामर ग्रामर क्यों पढ़ते हो? ताकि तुम बोल पाओ। अब द बेस्ट तरीका इज, विदाउट ग्रामर भी तुम लोग बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कैसे? पहला मेथड क्या बताया? डी टेक्निक। अभी मैं ये सारी चीजें सीक्वेंस में करके बताऊंगा। दूसरा मेथड क्या है? ग्रामर रूल्स नहीं, सिर्फ यू शुड नो टाइम एंड सेंस। और तुम सबसे बड़ी गलती पता है कहां करते हो? तुम सब लोगों का टाइम ठीक होता है, तुम्हें सेंस समझ में नहीं आती, मैं वही समझाने आया हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? आया समझ में? तुम्हें सब लोगों को टाइम पता होता है, पर तुम्हें ना सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आता। अगर तुमने सेंटेंस का सेंस समझ लिया, यू कैन राइट एंड स्पीक एनी डैम सेंटेंस, और उसके लिए 2 महीने नहीं चाहिए, कल से ही लिख सकते हो, इतना फास्ट। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा 20 दिन लगेंगे, अरे कल से सीख सकते हो, कल से लिखना। अभी आधे लोग तो अभी से ही लिखने लग गए हैं सेंटेंसेस। दैट्स व्हाट इट इज। यस और नो? चलो अब स्टार्ट करें। अब ना मैं आप लोगों को बताता हूं टाइम एंड सेंस। पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने नोट डाउन की, सब लोगों ने नोट्स बना रहे हो?
फटाफट नोट्स बनाओ, राइट? फटाफट नोट्स बनाओ, I4 फटाफट नोट्स बनाओ। नोट क्या है यहाँ पे, लाइक I4 होना चाहिए था, बट सब लोग एक नोट्स बनाओ। दिस इज व्हाट I4 इज, कि ग्रामर इज नथिंग, इंग्लिश इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस। आया सबको समझ में? और टाइम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। I4 लिखो, सबको ये चीज समझ में आई? एवरीवन राइट इट डाउन, I4 इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स को ओपन कर लो और ये नोट्स लिखो। ग्रामर इज नथिंग, ग्रामर कुछ भी नहीं है बॉस, कॉम्बिनेशन है टाइम एंड सेंस का। अगर टाइम एंड सेंस को समझ लिया तो ग्रामर का कोई कंसेप्ट नहीं करना। और टाइम एंड सेंस को समझने के लिए कितना टाइम लगेगा? अरे सिर्फ 1 घंटा, दैट्स इट। दैट्स इट, 1 आवर, जिसमें आधा घंटा मैं आज आपका लूंगा, आधा घंटा कल लूंगा, खत्म, तुम्हारा ग्रामर खत्म। दैट्स इट। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर फैक्टर दैट वी आर क्रिएटिंग नोट्स फॉर यू एज वेल? यस और नो? सब लोग ये नोट्स में लिखो, ग्रामर इज नथिंग, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस, दैट्स इट। टाइम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब मैं आपको बताता हूं इस चीज को, सेंटेंसेस को करना कैसे है, राइट? ठीक है, नाउ आई एम गोना लेट यू नो कि करना कैसे। इधर आओ, देखो, तुम लोगों को थोड़ा बहुत डी टेक्निक समझ में आया, और अभी टेंशन मत लेना, मैं प्रैक्टिकली तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सेंटेंस दूंगा, तुम सब लोग मेरे साथ डी टेक्निक करोगे, टाइम एंड सेंस करोगे, इन्फॉर्मेशन शीट करोगे। जो नहीं आएगा तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा। अभी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूं, फिर हम हर कंसेप्ट को डीपली समझेंगे 2-2 मिनट में। दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट इज। आया? चलो नाउ यार, डी टेक्निक के बाद टाइम एंड सेंस इज इंपॉर्टेंट। एंड टाइम तुम्हें ऑलरेडी पता है, टाइम 3 तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव नोटिस दिस थिंग कि व्हेन यू ट्राई टू स्पीक और व्हेन यू ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, आपको बोलना होता है आई वॉज गोइंग, बट गलती से मुंह से क्या निकल जाता है? आई एम गोइंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव फेल्ट दिस पर्टिकुलर इशू? मुझे बताओ, मुझे बताओ, कितने लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट फ्यूचर, बट गलती से मुंह से पास्ट के बारे में कुछ पता लग गया? हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव नोटिस दिस? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव नोटिस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट आई वांट टू राइट आई विल, बट मैंने आई एम लिख दिया, गलती हो गई। अब जो बच्चे वाली गलती करते हैं, द पीपल, द वर्किंग प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे लोग, पायलट जैसे लोग ये वाली गलतियां करते हैं, तो अगर आपकी ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो आप अपने नोटबुक में लिख लो कि तुम्हारी ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल सी बात यह है कि तुम्हारा टाइम गलत है। डू यू गाइस एग्री? अब जो बंदा आई वॉज का आई विल कर रहा है, वो रोता रहता है मेरी ग्रामर वीक है, ग्रामर वीक है, ग्रामर वीक है। अरे नहीं, तुझे बस टाइम कैच करना नहीं आ रहा। एग्री? ग्रामर इज नेवर एन इशू। आई वॉज का आई एम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ग्रामर वीक है, नहीं, टाइम इशू है। हाँ या ना? और ये छोटी सी मिस्टेक और एम्बेरसमेंट इतना बड़ा कि मैं अपने बॉस के सामने बोलना चाहता हूं कि मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी, आई सेंड यू द मेल, ये बोलना था पर मैंने बोल दिया आई एम सेंडिंग यू द मेल, एंड बॉस कह रहे हैं व्हाट, यू आर सेंडिंग मी? कहां? लाइक ओ सर, yesterday, yesterday, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ या ना? सो द पॉइंट इज, कि अब ना टाइम तुम्हें ऑलरेडी आता है। मैं तुम्हें 3 सेंटेंसेस दिखाऊंगा, अब हम गेम खेलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर वन गेम? लेट मी नो, फटाफट बताओ यार, बहुत चीजें बतानी है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर द गेम? द गेम इज, मैं आप लोगों को 3 सेंटेंसेस दूंगा, आपको सिर्फ उसका टाइम बताना है, दैट्स इट। नो इंग्लिश एज ऑफ नाउ। टाइम एंड सेंस ठीक कर लो, इंग्लिश विल कम ऑटोमेटिकली। दीज आर द सेंटेंसेस, फटाफट बताओ। हम सब मिलकर ये एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। पहला सेंटेंस, चैट्स ओपन कर दो। पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट का है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है? मुझे बताओ। अरे तुम्हें तो इंग्लिश ऑलरेडी पहले से आती है। फर्स्ट सेंटेंस इज फ्यूचर, एब्सोल्युटली। द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम ओवर हियर? इंग्लिश बाद में आती है, पहले टाइम में आता है। सेकंड बताओ। सर आप प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर रहे थे, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम हियर? एब्सोल्युटली द टाइम इज गोइंग टू बी द पास्ट। किसी को प्रेजेंट तो नहीं लग रहा? चलो, द थर्ड सेंटेंस, उसने अभी अभी मुझे मेल भेजी है, व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? लेट मी नो। टाइम सबका सही होता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ना है ही नहीं। Directly, we just have to become fluent in English, and that's what it matters. It doesn't matter how much you have studied, it all matters whether you guys can speak or not.
एब्सोल्युटली इट्स प्रेजेंट। चैट्स को बंद कर दो। तुमने एक चीज नोटिस की कि अब आप मुझे एक ऑनेस्टली एक बात बताना, तुमने सेंटेंस पढ़ा और अगर तुम्हें ये सेंटेंस इमेजिन अ फैक्ट कि ये पास का लगा, डू यू गाइस एग्री कि आप इंग्लिश जब बोलोगे या लिखोगे तो पास का कोई कंसेप्ट लगाओगे? डू यू गाइस एग्री, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं? मेरी बात दोबारा सुनना। मान लो ये वाला सेंटेंस तुम्हें पास का लगता है, तुम्हें ये ऊपर वाला सेंटेंस पास का लगा तो तुम पास का लॉजिक लगाओगे, और as ये सेंटेंस फ्यूचर का है तो तुम्हारा सेंटेंस हो गया ना ग्रामेटिकली रॉन्ग। पर देखा जाए ग्रामर इज नॉट द प्रॉब्लम, राइट? देखा जाए ग्रामर इज नॉट द प्रॉब्लम इज टाइम। मजा आया? लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सबको समझ में आया? Yes or no? Loved it? So, like, there are certain people, those who are not able to understand the language Hindi. So, in the simple English translation would be law. Whenever the sentence is coming, you just have to figure out whether the sentence is past, present, or future. Once you are able to figure out the sentence is present, so it will end up, we will end up using the concepts of present only. The problem is not about that whether we learn or whether we know the grammar rules or not. The problem is whether my mind is able to judge whether the sentence is future, present, or past. If my mind is able to judge that this particular sentence is future, ultimately my mind will process the sentence in English in future. Loved it? मजा आया? हाँ या ना? राइट, ठीक है। आप ही बताओ ना कितने लोगों को ये चीज समझ में आया, कितने लोगों को ये चीज समझ में? नाउ लेट्स फोकस अपॉन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट ग्रामर, दैट इज सेंस। सेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वी डोंट अंडरस्टैंड सेंस एंड दैट्स द वे। अब कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि टाइम प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है? तभी ना मैंने यहाँ पे नीचे तुम्हारा लिखवा दिया था कि टाइम मींस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये I5 नहीं है। अभी हम इस फिफ्थ वाले पॉइंट को I5 बनाएंगे। एक बारी मैं सेंस बता दूं, पर लिख लो, आप लोग लिख लो, ये टाइम मींस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलो अब ना आप लोगों को मैं बताता हूं सेंस। गाइस देखो, टाइम की 3 वेराइटीज होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वैसे ही देयर वुड बी लाइक, इन शॉर्ट द पॉइंट इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लो, या तो वो पास्ट का होगा, या प्रेजेंट का होगा, या फ्यूचर का होगा। बट if I talk about sense, time की तरह sense is also divided into 3 parts. अब ना सेंस को समझने का मतलब क्या होता है? वाओ, राइट, ये अभी हम और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सेंस को समझने का सबसे बड़ा मतलब क्या है? सेंस क्या होता है अब आप समझना। सेंस इज बेसिकली मीन, लाइक बेसिकली सेंस इज ऑल अबाउट कि आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपको क्या फील आई उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, उसको सुनने के बाद। सबको समझ में आया? हाँ या ना? सबको ये चीज समझ में आया? यस और नो? दैट मैंने कोई चीज पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद मुझे क्या फीलिंग आ रही है। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड कर रहे हो right now, what you guys are feeling? Open in the chat box, let me know whether you guys are feeling good, energetic, or it's boring. You guys can let me know what is your feeling right now. People are saying good, right? People are saying fire, people are saying gold. What else? People are saying energetic, people are saying good, very good. आप देख पा रहे हो ना फील क्या हो रही है? ऐसी ना लैंग्वेज की कुछ फीलिंग्स होती हैं। यस और नो? समझ में आया? चैट्स को बंद कर दो। अब लैंग्वेज की जो सेंस होती है ना, लाइक मैंने किसी सेंटेंस को पढ़ा, सेंस की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। दैट्स इट। जैसे टाइम की 3 थी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे सेंस की भी 3 होती हैं। सो द नंबर थर्ड वुड बी द सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सब लोग समझेंगे इस बात को। एंड मैं मार्क माय वर्ड्स, वंस यू मास्टर सेंस, यू मास्टर इंग्लिश। एक बारी अगर आपने सेंस को मास्टर कर लिया, और तुम लोग सेंस में ही गलतियां करते हो तो सीखो, इधर देखो, फटाफट सीखेंगे सब लोग। एक बारी आपने कॉन्टिन्यूटी को मास्टर कर लिया, आपने हर चीज को मास्टर कर लिया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस इन इंग्लिश, व्हेन यू रीड दोज, व्हेन यू राइट दोज, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको तुम पढ़ो ना, तुम्हें ना कॉन्टिन्यूटी वाली फीलिंग आती है। कॉन्टिन्यूटी फीलिंग बेसिकली मींस लगातार। हाँ या ना? कितने लोग एग्री करें? कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे ना हमें जो फील आती है वो आती है लगातार की, यार, है ना? कॉन्टिन्यूटी बेसिकली मींस लगातार, लगातार। फॉर एग्जाम्पल, एंड मैं कॉन्टिन्यूटी को ना ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, सी डॉट 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 डॉट।
लगातार है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक बात बोलूं कि यार मैं पानी पी रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? इफ आई एम ड्रिंकिंग वाटर राइट नाउ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं पानी पी रहा हूं, यस और नो? सो द पॉइंट इज, कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? अब ना मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, टेस्ट लूं, और देखना, तुम देख लेना तुम गलती ना करो। आई गिव यू टू सेंटेंसेस, आपको बस यही बताना है वेदर यू थिंक इट्स अ कॉन्टिन्यूटी और नॉट। चलो, ये सेंटेंस ये है, मैं आपको डायरेक्ट फ्लुएंसी की गाइडेंस दे रहा हूं, मुझे बताओ ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है या नहीं है? एंड द सेकंड वुड बी, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, whether this particular sentence is continuity, no or yes। चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो द फर्स्ट सेंटेंस। मुझे बताओ, सबसे पहला सेंटेंस बताओ, पहला कॉन्टिन्यूटी है? अरे पहला बताओ मुझे, सबसे पहला मुझे बताओ, whether the sentence is continuity or not। Let me know. Let me know, guys, whether the sentence is continuity or not. That's the most important thing. Let me know. It's continuity, great. Yeah. The correct answer would be it's a continuity. ये सही आंसर है। चलो, सेकंड मुझे बताओ, मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, चैट्स को ओपन कर दो। सेकंड कॉन्टिन्यूटी है, यस या नो? हाँ या ना में मुझे जवाब दो। चलो चलो फटाफट लोग जवाब देंगे, लेट मी नो, हाँ या ना। आपने देखा इंडिया कंफ्यूज्ड है। There are certain people, those who are saying the second is continuity। फर्स्ट तो सब लोग कह रहे हैं continuity है, सेकंड में लोग कंफ्यूज्ड हैं, और ये कंफ्यूजन तुम्हें इंग्लिश में 10 साल पीछे ले जाएगी। एंड यही रीजन है कि तुम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हो। अब सुनना इस बात को, चैट्स को बंद कर दो गाइस। पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं बता दूं, बताऊं? अगर ये सेंटेंस, अच्छा मैं कल अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा था, कितने लोग, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यस। ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का है। अब जितने भी लोगों को ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का नहीं लगा, देखा जाए तो उनकी इंग्लिश गलत हो गई ना, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि उनकी इंग्लिश गलत हो गई? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि उनकी इंग्लिश गलत हो गई, अगर किसी को ये कॉन्टिन्यूटी नहीं लग रहा है? अब नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। अब आप समझना कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। पहली चीज अभी मैं उन लोगों को समझाऊंगा जिनको, यार जिनका आंसर सही है, विच इज ग्रेट, पर जिन लोगों ने भी आंसर रॉन्ग दिया ना, वो अब मेरी बात को सुनेंगे फॉर द 2 मिनट्स। 2 मिनट मेरी बात को समझो, पहले इस चीज को करेक्ट करते हैं। देखो, हुआ क्या है, यू गाइस थिंक कॉन्टिन्यूटी इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, हाँ या ना? तुम्हें लगता है कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या होता है? लगातार जो काम अभी हो रहा है तो वही कॉन्टिन्यूटी है। अब जो काम हो चुका है या होएगा वो कॉन्टिन्यूटी थोड़ी हुआ, तुम्हें यही लगता है, हाँ या ना? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूटी के बारे में सही नॉलेज नहीं है। एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब समझना, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना कि जैसे मैं बोलता, मैं ये वर्ड हटा देता और मैं बोलता कि मैं अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तुम सब लोग बोल देते ना ये कॉन्टिन्यूटी है। हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री? अगर मैं बोल देता कि मैं जॉब प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूं, तुम्हें क्या लगता? अरे ये तो अभी प्रेजेंट का है, तो कॉन्टिन्यूटी होगा, कॉन्टिन्यूटी होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप मेरी बात को समझना, अब तुम्हें पता लगेगा कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का क्यों है। गाइस, सबसे बड़ी एक गलती आप लोगों ने ये कर रखी है कि आप लोगों ना सेंस के कंसेप्ट को एंड टाइम के कंसेप्ट को ना एक दूसरे के साथ अटैच रखते हो, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आपको ये लगता है समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूटी तो वो प्रेजेंट ही होगा, नहीं। अब नॉलेज सुनना, सब लोग सुनना गाइस, कॉन्टिन्यूटी का ना टाइम से, कॉन्टिन्यूटी का टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। कॉन्टिन्यूटी पास्ट की कॉन्टिन्यूटी भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, एंड फ्यूचर की भी हो सकती है। आया समझ में? कॉन्टिन्यूटी हैज नो रिलेशनशिप विद टाइम। कॉन्टिन्यूटी एक इंडिविजुअल सेंस की चीज है। आया समझ में? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आज आप सब लोग आए, ठीक है, एंड ये सेंटेंस सही है कि इफ आई एम सेइंग मैं अभी पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, सेंटेंस सही है, ग्रेट। अब मान लो आप कल आते हो, कल टुमारो वुड बी फ्राइडे, यस और नो? आप फ्राइडे को आए और मैं आपको ये बोलूं, हे गाइस, डू यू गाइस रिमेंबर कल थर्सडे था,
तुम्हें याद है कि मैं थर्सडे को पानी पी रहा था। अब समझना, कॉन्टिन्यूटी बेसिकली मीन्स क्या होता है, लगातार। मैं अभी पानी पी रहा हूं, इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग। मैं अगर ये बोलूं कि मैं कल पानी पी रहा था, तो देखा जाए मैं बात पास की कर रहा हूं, पर है तो कॉन्टिन्यूटी ये भी ना। आया सबको समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, हे गाइस, आपको याद है 2011 में यार धोनी क्या बैटिंग कर रहा था, क्या वो छक्के मार रहा था। ये बात पास की है, पर मैं जिस तरीके से आपको फील दिलवाना चाहता हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं छक्के मार रहा था, द हैपनिंग वाज इन कॉन्टिन्यूटी। आया सबको समझ में? लव्ड इट। कितने लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कॉन्टिन्यूटी का? एंड ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मैं आपको बोलूं यार अभी 2027 आ रहा है, विराट कोहली छक्के मार रहा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूटी है। टाइम कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, और तुम लोगों को भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आया समझ में? time has no relationship with sense and sense has no relationship with time. मजा आया? सबको समझ में आया? Sense have no relationship with time and time has no relationship with sense. So इसका मतलब ये हुआ कि this particular sentence is also continuity, right? I know past की continuity है, but I am not here talking about time. I am here talking about sense. आया सबको समझ में? कोई दिक्कत है अभी तक? कॉन्टिन्यूटी समझ में आई? कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी। ये नहीं कि जो अभी हो रहा है वही कॉन्टिन्यूटी है, पास्ट कॉन्टिन्यूटी भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी भी हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं? इजी। चलो, मजा आया? माइंडसेट चेंज हुआ? क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ऐसा कॉन्टिन्यूटी होता है, तो तुम क्या करोगे? सेंटेंस पढ़ोगे और तुम्हें लगेगा ओ ये तो काम हो चुका है, अब थोड़ी हो रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूटी थोड़ी हुआ, ये तो कंप्लीटेड हुआ। पर नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी ही है। Loved it. अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। Now the second way would be, after the continuity, there are certain sentences which gives me the vibe of completed. यार कुछ ऐसे sentences होते हैं जिनको पढ़ के ना ऐसा नहीं लगता वो काम हो रहा है या हो रहा था या होएगा। There are the certain sentences जिनको हम पढ़ते हैं और ऐसा लगता है oh the work has been completed। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं, मैंने आपको मेल सेंड कर दी थी। क्या है ये? फील क्या आ रही है? कंप्लीटेड की। यस और नो? इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। क्या है ये? क्या अगर यहां पे हो रहा है ना, अगर ये होता ना कि मैं आपको मेल सेंड, अगर ये होता ना कि मैं आपको मेल सेंड काइंड ऑफ कर रहा हूं, काइंड ऑफ, दिस वुड हैव बिकम द कॉन्टिन्यूटी। बट मैंने कर दी थी, इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। लव्ड इट। यस और नो? समझ में आया? कंप्लीट मतलब कोई चीज फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सेंटेंस को पढ़ो, अभी काम हो रहा है क्या? ये पहले भी हो रहा था? नहीं, खत्म है, कंप्लीटेड लिखो। दिस इज व्हाट द फंडा ऑफ लैंग्वेज इज। वंस यू मास्टर टाइम एंड सेंस, नो ग्रामर रूल्स आर रिक्वायर्ड। तुम लोग क्या इतना ग्रामर पढ़ते हो? अभी आप देखना, पूरी इंग्लिश को हम इन दो कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने ही करूंगा, एंड यू कुड हैव लाइक यू कैन टेक द डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट सेंटेंसेस एंड वी गाइस आर गोना जस्ट like bowl out all the sentences through these particular concepts only now। अब ये तो एक मेरा ये फीलिंग है, ये तुम लोगों की एक बर्निंग डिजायर है। मैं YouTube पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखकर थक चुका हूं। कितने लोग एग्री करेंगे? मैं थक नहीं रहा हूं, ये काम कंप्लीट हो चुका है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। यस और नो? क्या फीलिंग आ रही है? इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंप्लीटेड। इतना समझ में आया? अब ना मैं आपको एक हिंट देता हूं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे, जैसे अच्छा एक सेंटेंस है कि मेरा नाम अमन है, मुझे बताओ। एक सेंटेंस ये है कि मेरा नाम अमन है, ये बताओ कंप्लीटेड है या कॉन्टिन्यूटी है? मुझे बताओ। मेरा नाम अमन है, कॉन्टिन्यूटी है कंप्लीटेड है? बताओ। कंप्लीटेड है। कितने लोग कंफ्यूज हैं? ऐसा लग रहा है कंप्लीटेड है। ना 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 ना, राइट? नो, इट्स नॉट कंप्लीटेड। Whenever you guys are confused between completed and continuity, always remember that particular sentence would be simple। ये सेंटेंस सिंपल का है। मैं एक गवर्नमेंट ऑथराइज इंग्लिश फ्लुएंसी कोच हूं। देयर इज नो वर्क हैपनिंग। कोई काम नहीं हो रहा भाई। सिंपल सी बात है कि मैं हूं, कोच हूं। देयर इज नथिंग गेटिंग कंप्लीटेड। मैं आपको पुराने मेथड्स नहीं सीखने दूंगा, कुछ भी कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी जैसा नहीं है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सिंपल। सो इन शॉर्ट,
आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताऊं? हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि यार कब सेंस सिंपल होती है, कब कॉन्टिन्यूटी होती है एंड कब कंप्लीटेड होती है. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फील इट? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि यार अमन टाइम तो मेरा स्ट्रांग है, पर मुझे ये पता नहीं चल पाता कि जो मेरा जो मेरी सेंस है वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड है. एंड दैट्स एग्जैक्टली वी विल बी सॉल्विंग. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी सॉल्विंग. बट इतना तो समझ में आया ना कि इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, तुम्हें एक माइंडसेट चेंज हुआ तुम्हारा कि तुम इस दुनिया का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, अगर तुम्हारा टाइम में गलती हो गई या सेंस में गलती हो गई, मतलब तुम सेंटेंस गलत ही लिखोगे. राइट? मतलब तुम सेंटेंस गलत ही बोलोगे, बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस. once your time and sense is right, no one can like no one can destroy you. आया समझ में? someone is writing one of the best sessions ever. तो अब ना हम कुछ लर्निंग कर लेते हैं. चलो चलो चलो, लर्निंग्स का टाइम हो गया. काफी काफी टाइम से everyone quickly just type I6. Fantastic. चलो चलो चलो. Right, everyone, how many of you guys felt this particular thing fantastic? Quickly, everyone, chats को open करो. Everyone type I6. I6 मतलब improvement 6 times. I6 मतलब important 6 times. अब ये पॉइंट क्या थे? ये रहा तुम्हारा I6. और अब मैं तुम्हारे I5 को भी डिफाइन कर देता हूं. देखो, लिखना इसको. अब फटाफट रिवाइज करते हैं. सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हमारी क्या है? माई ब्रेन इज एम्प्टी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक. दिमाग खुला रखना है ताकि मैं पहले करेक्ट हूं तभी तो मैं बोलूंगा. एंड मुझे सबसे पहले अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है. अब करेक्ट करने के लिए मुझे डी टेक्निक या टाइम एंड सेंस आना चाहिए. एंड मुझे लेजेंडरी डी टेक्निक से ये पता चला हाउ आई कैन स्टार्ट अ सेंटेंस. और ये चीज और भी पता चली, ग्रामर कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड सेंस. मैं I4 पढ़ रहा हूं अभी. एंड I5 में मुझे ये भी चीज पता चली कि टाइम मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सेंस मतलब होता है सिंपल कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी. और I6 में ये चीज पता चली कि कॉन्टिन्यूटी इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंट टाइम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. आया समझ में? आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है? ये लो, तभी बोल रहा था लैपटॉप में देखा करो. तभी बोल रहा था लैपटॉप में देखा करो. राइट? पढ़ने आए हो, यहाँ पे सीखने आए हो. लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन होती है, हर चीज क्लियर दिखती है. फोन में लाखों डिस्ट्रैक्शन है, और लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड लोगों के लिए कोई जगह नहीं है. राइट? राइट? आया सबको समझ में? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? सबको ये चीजें समझ में आई है? सबको ये चीजें समझ में आई है? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड टू प्ले दिस पर्टिकुलर गेम विद मी? आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है. ओके, सो कितने लोगों को अच्छा लगा कि वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर 6 पॉइंट्स एज ऑफ नाउ? लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेल्ट वाओ? मुझे बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फेल्ट वाओ दैट वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर 6 पॉइंट्स एंड बहुत जल्दी कवर अप कर लिए? एंड कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ? मुझे बताओ. नाइस. अभी तो हमें फॉर्मेशन शीट भी करनी है. सो व्हाट एग्जैक्टली विल बी डूइंग? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. एंड दैट सरप्राइज वुड बी and that surprise would be, how many of you guys want the recording of this particular session? Let me know. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. How many of you guys want the recording of this particular session? Great. Lot of people are saying I want it, I want it. Wonderful. How many of you guys want the PDF of this particular slides? Let me know. How many of you guys want the recording session, the PDF, and even these particular notes which I have made for you, and for absolutely free? कितने लोगों को ये तीनों चीजें चाहिए? अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है. How many of you guys want it for absolutely free? All the 3 things: the class notes, the slides which I am writing on, and even the recording. So guys, उसके लिए what will be happening? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्यूचर इवेंट्स को एंड फ्यूचर क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं? मुझे बताओ. सो गाइज, एज मैं बहुत ही ज्यादा मल्टीपल क्लासेस लेता रहता हूँ, राइट? तो कभी भी कोई सेशन होता है, एंड ये सेशन अभी ओवर नहीं हुआ बाय द वे, बिकॉज अभी तो स्टार्ट हुआ है. बिकॉज इफ यू थिंक दैट दिस सेशन इज ओवर, अभी हम लोगों ने लाइक
There is so much things which you guys need to discuss. So what is happening? So guys, next time आपको कल तो आना ही है, but as like मैं कल के बाद भी मैं लाइव सेशंस लेता रहूंगा, तो उसको बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. तो व्हाट विल बी डूइंग, मैं आपको अभी अपने इंस्टाग्राम का हैंडल सेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी मैं कोई भी सेशन लेता हूं तो मैं इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन पे या अपने स्टेटस पे डाल देता हूं. तो यू शुड नॉट मिस इट, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं जो भी सेशंस लेता हूं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बिकॉज हमारा विजन ये इंडिया को ग्रो करने के लिए. सो द पॉइंट इज सो द पॉइंट इज आई हैव ड्रॉप डाउन माई पर्टिकुलर इंस्टाग्राम हैंडल. क्विकली गो फॉलो मी, बिकॉज जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको हम ये वाली चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पाएंगे. आया ना समझ में? क्योंकि ये जो सारी की सारी चीजें ये आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टेटस पे आज 10 बजे में मिलेंगी. सो एवरीवन शुड डू इट quickly guys. I'm giving you 2 minutes, and if you think that I deserve one follow of yours, इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा. You will get the notes, you will get the recording, you will be getting class notes, plus आपको future sessions भी you guys will be getting. You just have to go on the Instagram and follow me. That's it. And I'll give you 2 minutes for that. And उसके बाद आप लोगों के लिए एक biggest surprise है. We guys will play the game of English language. फटाफट करो. I'm giving you 2 minutes. चैट्स को बिल्कुल ब्लॉक कर दो. 7:56 पे we guys are going to start the mindset session. बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 मिनट में we guys are going to start the session. फटाफट फटाफट guys. It's 7:54. Quickly go on the Instagram, follow me and come back. That's it. That's what you guys need to do. So that मैं आप लोगों को ये वाले क्लास नोट्स, मैं आप लोगों को ये जो मैं स्लाइड्स में लिख रहा हूं, एंड इवन मैं आपको इस सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग सेंड करता हूं. क्विकली गाइस डू इट. यू हैव 1 more minute एंड फिर वापस आना है, और फिर आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज है. बहुत ही तकड़ा सरप्राइज है. अब मैं आप लोगों के इंग्लिश के ऊपर तो काम कर दिया है. नाउ आई विल बी वर्किंग अपॉन योर माइंडसेट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड वंस यू हैव डन इट, जस्ट टाइप डन. जस्ट टाइप डन. आई नो अभी आप लिख नहीं पाओगे, आपके पास 2 मिनट है. 7:57 पे आई एम गोना स्टार्ट द सेशन ऑफ माइंडसेट. बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, फॉर्मेशन शीट कैसे होंगी, आप लोगों ने अभी चीजें सीखी हैं. प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अब हमें स्टार्ट करना है. क्विकली गाइस डू इट. फटाफट. वी नीड टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर द पीपल जो यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस देखते सीखते कुछ भी नहीं है. कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश मूवीज देख लो इंग्लिश आ जाएगी. टोटली बुलशिट. अभी तक आई है क्या? मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि तुम्हारे पैटर्न्स गलत हैं. आज मैं तुम्हारे पैटर्न्स को सॉल्व करूंगा. चलो स्टार्ट करें. लास्ट 40 सेकंड है. क्विकली गो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी एंड कम बैक. एंड फिर हम i7 पे चलेंगे. i7 का प्रोसेसर देखा ना कितना फास्ट है. i7 पे चलेंगे. i6 वी हैव डन इट, एंड आज हम i10 तक कंप्लीट करेंगे. ठीक है, i6 हो गया, i10 तक कंप्लीट करता है. सो i7, i8, i9 एंड इवन i10. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कल हम i25 तक करेंगे, फ्रॉम 11 टू i25. ओके, क्विकली गाइस डू इट. क्विकली एवरीवन. इज इट डन? चलो चैट्स को ओपन करो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव डन इट? जस्ट टाइप डन. आई एम राइट हियर बाय द वे. कर दिया सबने? ग्रेट. चैट्स को ओपन करो. लव्ड इट. कोई इधर उधर की मैसेजेस नहीं लिखेगा, बाहर निकाल दिए जाओगे. पढ़ाई पे ध्यान दो. चलो इधर आओ. राइट, यू गाइस आर लविंग इट. दैट्स वंडरफुल. चलो अब ना चैट्स को कर दो बंद. नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट विद योर माइंडसेट पार्ट. गाइस अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया है, एंड अभी ना हम इन चीजों की लाइव प्रैक्टिस करेंगे. चलो कर लेते हैं. लेट्स सपोज अभी तक मैंने आपको क्या बताया है. इंग्लिश इज ऑल अबाउट टाइम एंड सेंस. यस और नो? अब एक सेंटेंस आ गया, मुझे टाइम एंड सेंस बताना, रिवीजन भी हो जाएगी. मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहा था. सबसे पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस का टाइम क्या है. पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? बताओ बताओ. ग्रेट, इट्स अ क्लियर केस ऑफ पास्ट. नाउ सेंस क्या है? अब आपको ये चीज समझ में आई ना? जो टाइम है वो पास्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रेजेंट एंड फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी. इसका मतलब मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कंसेप्ट्स लगाऊंगा ही नहीं. मैं यूज ही नहीं करूंगा. राइट. अब मुझे ये बताओ पास्ट में, अब ओके इट्स पास्ट, बट पास्ट की क्या सेंस है? सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लीटेड है? मुझे बताओ. कॉन्टिन्यूटी है, एब्सोल्युटली. इसलिए वी हैव मार्क डाउन लाइक दिस वे.
अब आपने देखा, अब आप ग्रामर की गलती कभी कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज ग्रामर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, टाइम एंड सेंस. यू टेल मी एनी वन कंसेप्ट ऑफ ग्रामर जिसमें टाइम एंड सेंस का लॉजिक यूज नहीं हो रहा, यही तो है. अब उसको तुम नाम टेंसेस दे दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दो, एक्टिव पैसिव दे दो, वॉइस दे दो, बुलशिट. ये करने की जरूरत ही नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? ये ता है, ती है, चुका है, चुकी थी, नॉट रिक्वायर्ड. हमें सिर्फ सेंस समझनी है सेंटेंस की. वो कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड लगा दो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लविंग इट? आपके 20 साल की नॉलेज, दिस इज बूम 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 बूम. चलो, नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. अब ना हम लोगों ने ना आप लोगों के लिए एक गेम को डिजाइन किया है. This is what it is. We have designed this particular session in such a way so that how many of you guys are ready to play the game with me? Huh? How many of you guys are ready to play the game with me? And the game is, how many of you guys agree that this is what we have understood? We have understood so far the bit of the D concept and the time and concept, time and sense का. And अब हमें फॉर्मेशन शीट को समझना है. नाउ हम लोगों ने आप लोगों के लिए पता है क्या किया है? इस कंसेप्ट को ना इस गेम की तरह डिफाइन कर दिया. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा. इट कुड बी एनी सेंटेंस. हम लोग अब एक गेम खेलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द डी टेक्निक, then you will let me know the time of the sentence, then you will let me know the sense of the sentence, and boom, we'll be able to make any damn sentence. हमारे यहाँ पे पता है गेम कैसे खेली जाती है कि जैसे मैं ऐसे बताता हूँ. सेंटेंस स्टूडेंट को दिया, वो कहता है ओके अमन सर. मैंने डी टेक्निक लगाई, वाओ. मैंने टाइम प्रेजेंट मैंने बोल दिया. अच्छा टाइम पास था, ओ हाँ यार टाइम पास था, चलो ठीक है. अब मुझे और बताओ, टाइम पास आ गया, ठीक है टाइम पास हुआ. सेंस कंप्लीटेड, अरे नहीं यार सेंस कंटिन्यूटी होनी थी. दिस इज द वे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वुड लव टू प्ले दिस पर्टिकुलर गेम विद मी? तो क्या हुआ है कि देखो तीन चीजें हैं, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट. तो आप लोगों के लिए दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन. अभी हमने फॉर्मेशन शीट को हाइड कर दिया है क्योंकि ये जो गेम है ना, वी गाइस आर गोइंग टू प्ले टुमारो. राइट? सबको ये चीज समझ में आई है कि ये जो गेम है, मैं आप लोगों के सामने सेंटेंस रखूंगा, फॉर्मेशन शीट के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, बिकॉज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो मुझे आप लोगों को बताना है. इट इज रिगार्डिंग द माइंडसेट एंड ऑल दैट स्टफ. तो सबको ये चीज समझ में आई है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर कमिंग टुमारो फॉर द गेम? एंड आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आज मैं तुम्हें ओवरलोड नहीं करना चाहता. अभी हम डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस को थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे कल भी. एंड कल ये फॉर्मेशन शीट का आके भी गाइस आर गोना कंप्लीटेड. इतना समझ में आया? लव दिस पर्टिकुलर गेम. गेम ही है इंग्लिश. इंग्लिश इज नॉट अबाउट लर्निंग, इंग्लिश इज नॉट अबाउट स्टार्टिंग, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्लेइंग द गेम. एंड लेवल्स होते हैं ना, अरे डी टेक्निक, टाइम, सेंस, फॉर्मेशन शीट खत्म, द सेंटेंस इज फॉर्म. इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड. अब ना आप लोगों ने कभी भी अपने इंग्लिश के लेवल को चेक किया है? मुझे बताओ. अब ना मैं तुम्हें इंग्लिश की पूरी रूट कॉज पे ले जाता हूं कि तुम लोग इंग्लिश में स्ट्रगल क्यों कर रहे हो. 10-15 मिनट का सेशन है, मेरी बात को ध्यान से समझना. गाइस लॉजिक बहुत सिंपल सा है. क्या ये मेरा बोलना सही होगा? अब आई टॉक अबाउट अ बिट ऑफ माइंडसेट. कितने लोग रेडी है माइंडसेट के लिए? मुझे बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर द माइंडसेट सेशन? बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता. जो तुम इंग्लिश सीख रहे हो वो गलत सीख रहे हो. पहली चीज, ओल्ड मेथड्स हैं. मैं आपको बताता हूं, देखो लॉजिक पता है सिंपल सा ये है गाइस. मेरी बात को समझना कि आज मैंने आपको डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस क्यों बताया. देखो, यू गाइज वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, यस और नो? सब लोगों को एक कॉन्फिडेंस चाहिए. अभी हमारी हालत ये है, आपको पता है जो लूजर्स होते हैं ना, बुरा मत मानना, लाइक जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलते उनको पता है क्या चाहिए होता है. उनको पता है क्या लगता है कि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, मैं मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा. आप लोगों को भी यही लगता है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फील इट लाइक दिस वे कि यार आप लोग यहाँ पे हो, आप मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे. दिस इज व्हाट यू गाइस थिंक. बट व्हाट इफ आई टेल यू, एक गधा मजदूरी है. ये गधे लोग करते हैं और यही रीजन है कि तुम्हें अभी तक इंग्लिश नहीं आई है. और व्हेन आई यूज द वर्ड गधा, ये गधा मजदूरी मैंने खुद की थी, मैं आपको बता रहा हूं. और आधी इंडिया यही करता है. आधा इंडिया नहीं, 90% इंडिया ऐसे ही सीखता है, हाँ या ना? डू यू गाइस एग्री कि हम गधा मजदूरी कर रहे हैं? हमें लगता है मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा, और जब मैं पूछता हूं मेहनत में क्या करेंगे, अरे मैं मेहनत में ये करूंगा.
मैं रीड न्यूज़पेपर्स कर लूंगा, मैं इंग्लिश मूवीज देख लूंगा, मैं नोट्स कर लूंगा, मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूंगा, थिंक इन इंग्लिश करूंगा, अरे मैं इंग्लिश इन्वायरमेंट का वेट करूंगा। दिस इज व्हाट वी डू, हाँ या ना? नाउ मैजिक देखोगे, व्हाट इफ आई टेल यू कि दीज, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो इसी तरीके से मेहनत करते आए हुए हैं 10-20 सालों से, और आप पर्टिकुलर इस ब्लैक जोन से निकल ही नहीं पाए हो। आपको हर रोज लगता है मैं कल कॉन्फिडेंट बनूंगा, मैं परसों बनूंगा, मैं अगले हफ्ते बन जाऊंगा, पर हम यहीं के यहीं हैं। यू गाइस एग्री, हाँ या ना? हाँ या ना? एंड ये हालत सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स की नहीं है, ये हालत हमारे टीचर्स की भी है। यू गाइस एग्री, हाँ या ना? बिकॉज अब इंडिया बोलेगा फ्लुएंट, नए दौर की नई इंग्लिश। द पॉइंट ओवर हेयर इज, अगर तुम इस तरीके से चलते रहे, लेट मी टेल यू, तुम्हें 2 साल नहीं 2 जन्म लगेंगे, तब भी गारंटी नहीं है। डू यू गाइस एग्री? कितने सालों से तुम ये सब चीजें कर रहे हो? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रीड न्यूज़पेपर्स कर लिया, राइट, ये करते रहे। अब स्मार्टेस्ट हैक्स बताऊं क्या होगा? स्मार्टेस्ट हैक्स पता है क्या होगा? ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि इन चीजों को हम कहते हैं गधा मजदूरी। ये चीजें नहीं करनी, रादर स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है ना, तो इस गोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कौन से पार्ट्स? इस कंसेप्ट को अब हम बोलेंगे इंग्लिश शस्त्र। स्टेप बाय स्टेप इज द की। डायरेक्टली कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट बन नहीं पाता, तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या होगी? भूम। अगर तुम्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो तुम डायरेक्टली अचीव नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्मार्ट एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वे। आया समझ में? इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए, जब तक आप ये ज्यादा मेहनत करते रहोगे कुछ भी नहीं आएगा। आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग चाहिए कि जहां पे आप सबसे पहले यू विल अचीव दिस पर्टिकुलर गोल, गोल नंबर 1, एंड देन ओनली यू कैन अचीव दिस पर्टिकुलर गोल नंबर 2। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं? मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है कि तुम्हें लगता है मैं डायरेक्टली मेहनत करूंगा और मैं फ्लुएंट बन जाऊंगा? बट ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने लोग जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? मैं आपको बताता हूं। अल्टीमेटली यू नीड फ्लुएंसी, हाँ या ना? अल्टीमेटली तुम्हें फ्लुएंसी चाहिए। तो मुझे बताओ फ्लुएंसी होती क्या है? चैट्स को एक बार ओपन करना, चलो लेट मी नो व्हाट इज फ्लुएंसी। पहले तो मुझे ये बताओ, फ्लुएंसी मतलब क्या होता है? मुझे बताओगे? लेट मी नो व्हाट इज फ्लुएंसी। चैट्स को ओपन कर दो, मुझे बताओ व्हाट इज फ्लुएंसी बेटर इन इंग्लिश। समवन इज सेइंग जस्ट लाइक यू, ओके, समवन इज सेइंग फियरलेस, बिना रुके, क्लीन इंग्लिश, बिना फंबल के बोलना, मक्खन इंग्लिश बोलना, समवन इज राइटिंग, बिंदास बोलना, स्पीक करना, बिना एफर्ट्स के। चैट्स को बंद कर दो। व्हाट इफ आई टेल यू, जो तुमने आंसर्स दिए हैं वो 100% गलत है, और यही रीजन है कि तुम्हें फ्लुएंसी पता ही नहीं कि होती क्या है। तो तुम फ्लुएंट में बनोगे कैसे? लाइक इंग्लिश में फ्लुएंट बनो कैसे? गलत दे रहे हो आंसर। मैं ये तो नहीं बोलूंगा गलत दे रहे हो, पर इनकम्प्लीट दे रहे हो। आपने एक चीज नोटिस की कि अभी इस सेशन को मोर देन 7,000 लोग अटेंड कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है पिछले 2 सालों से। द पॉइंट इज, 7 के 7,000 लोगों को फ्लुएंसी चाहिए, कॉमन गोल है कि ये फ्लुएंसी चाहिए, पर सब लोग अपने अपने ढंग से फ्लुएंसी के बारे में बातें कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न। व्हाट इज द राइट पैटर्न, मैं आपको बताता हूं। गाइज, फ्लुएंसी का सबसे पहले मीनिंग सीखो। फ्लुएंसी मतलब पता है क्या होता है? सबसे पहले फ्लुएंसी इज द कॉम्बिनेशन, और इट्स द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक। डू यू गाइज एग्री? ये कहां किसने लिखा है कि फ्लुएंसी का मतलब होता है सिर्फ बोलना? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लुएंसी का कॉम्बिनेशन है। फ्लुएंसी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन एंड स्पीकिंग। आया समझ में? सबको ये चीज समझ में आया? सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि लिखना एंड बोलना। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन टू राइट एंड स्पीक। क्या? हूम, करेक्ट इंग्लिश, दैट टू क्विकली विथ कॉन्फिडेंस। ये चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारा गोल ये नहीं है, तो व्हाट इफ आई टेल यू इस चीज को गोल बना लो, तभी इंग्लिश आएगी, वरना आई डोंट थिंक सो आ पाएगी। क्योंकि अगर आनी होती तो इतने टाइम से आ जाती। आपकी इंग्लिश में आपको क्या चाहिए? कि आप लिख पाओ, बोल पाओ। क्या? करेक्ट इंग्लिश, वो भी फटाफट, विथ कॉन्फिडेंस के साथ। डू यू गाइस एग्री? यस और नो? डू यू गाइस एग्री? एंड मैं आपको एक चीज और बताऊं,
इंग्लिश का कॉम्बिनेशन यही है, द एबिलिटी टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश क्विकली विद कॉन्फिडेंस। चलो अच्छा, एक और गेम खेलते हैं। लेट मी नो, ये मैंने 6 वर्ड्स लिखे हैं ना, लाइक राइट, स्पीक, क्विक, करेक्ट, कॉन्फिडेंस, इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? राइट मी नो, लाइक लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Out of all these 6 things, out of all these 5 things, what is that one most important thing जो आपको चाहिए? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपको लगता है यार ये नहीं हुआ ना, मैं इंग्लिश में कभी भी बोल नहीं पाऊंगा यार। चलो लिखो, लिखो 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 लिखो, ध्यान से लिखना, क्या पता तुम्हारे आंसर्स गलत हो। राइट, ध्यान से लिखना, जो आपको लगता है इन पांचों में से कौन सी एक ऐसी चीज है जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना हुई तो लाइक नहीं आएगी इंग्लिश। क्या चीज है? सब लोग एक दूसरे के आंसर्स भी देख सकते हो। व्हाट इफ आई टेल यू, चलो अब चैट्स को बंद कर दो, फंस गए ना। व्हाट इफ आई टेल यू मोर देन 85% पीपल आर सेइंग कॉन्फिडेंस। जो भी आंसर कॉन्फिडेंस दे रहा है गलत है, क्विकली आंसर दे रहा है गलत है, स्पीक आंसर गलत है, राइट आंसर गलत है। कोई एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, वो लिख रहा था ऑल है, गलत है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही राइट आंसर है, दैट इज टू बी करेक्ट। क्योंकि गाइज एक सिंपल सा फंडा लर्नेबल वाला कंसेप्ट क्या है, तुम में से 90% लोग ये समझते हैं हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। आई एम सो सॉरी, दिस इज टोटली बुलशिट। अपनी सोच को बदलो। तुमने कभी सोचा है कि मान लो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, पर हमें किसी भी चीज को करने का कॉन्फिडेंस कब आता है? हाउ डू आई फील दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस? हाउ डू आई गेट दैट पर्टिकुलर क्विकनेस? जब अंदर ही अंदर मुझे पता हो कि जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे कि इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, इफ आई एम राइटिंग समथिंग और मेरा दिमाग ही मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अरे गलत बोल रहा है, अरे यहां गलती कर दी, अरे वॉज नहीं इस बोलना था, तो क्या मैं कॉन्फिडेंस कभी फील कर पाऊंगा? द आंसर इज नेवर। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यू गाइज। मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट आई एम लेटिंग यू नो, दैट इज प्रोबेबली, आप इसको मेरे एरोगेंस मत समझना, बिकॉज द वे वी हैव मेड पीपल फ्लुएंट इन इंग्लिश, हम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स को, स्टूडेंट्स को, engineers, lawyers, advocates, people from different industries, we have trained them in terms of communication skills and especially in the field of the spoken English. लॉजिक सिंपल सा यही है। क्या लॉजिक है? कि जो इंसान इंग्लिश में करेक्ट नहीं है ना, वो क्विक एंड कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। डू यू गाइस एग्री? यस और नो? जो इंसान इंग्लिश में करेक्ट नहीं है, वो क्विक एंड कॉन्फिडेंस होके करेगा भी क्या? क्या करेगा? आपने कभी लोगों को देखा कि एक बंदा है वो बहुत कॉन्फिडेंटली आता है, या आई विल स्पीक, और वो ऐसे बोलता है, हाय माय नेम इज अमन, आई गो देयर एंड फ्लुएंट आल्सो इन इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लुक आई हाउ करेक्टली आई स्पीक। whether I am able to connect with you guys or not, the answer is big no. Because if you are not correct in English, then there is no logic of becoming quick and confident. And आज आपको पता चला कि तुम लोग इंग्लिश में क्विक एंड कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये वाली बात पता है कि तुम इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो। लव्ड इट? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आया समझ में? लॉजिक समझ में? आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझना। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत सिंपल सी है। तुम्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस चाहिए, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी द स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग समझो। सबसे पहले अपने आप को इंग्लिश में आपको करेक्ट करना है। कैसे करना है बताऊंगा। फिर फास्ट एंड क्विक करना है, क्योंकि पहले करेक्ट करना है, फास्ट एंड क्विक करना है, एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज द पैटर्न। आप लोग गलती क्या करते हो? आप ये हो, आपको लोग बोल देते हैं डायरेक्टली इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश आ जाएगी, अरे बोलो बोलो बोलो। कभी नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग जब तक करेक्ट नहीं है और क्विक नहीं है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? यस और नो? अप्रोच पता चली? कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, रास्ता गलत है, तभी जगह मिल नहीं रही है। मैं जाना चाहता हूं शिमला, पर मैं हमेशा लखनऊ की रोड पकड़ लेता हूं, और मैं फिर बोलता हूं यार मैं इतनी तेज गाड़ी चलाता हूं, मेरी गाड़ी सही है, मैं सही हूं, मैं लखनऊ क्यों पहुंच रहा हूं? बेटा तेरा रास्ता ही गलत है। दिस इज व्हाट इट इज। आया समझ में? सबको अपनी गलती पता चली, डायरेक्टली कॉन्फिडेंस कोई नहीं हो पाता। इवन इफ आई टॉक अबाउट मी, आई वॉज नेवर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिकेम करेक्ट, एंड एज मैं सही हुआ तो मुझे अपनी स्पीड टेस्ट करने का मन किया। और जब तुम बोलते हो, तुम सिर्फ दो ही चीजों की वजह से कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो, क्या है वो? कि यार अमन मैं अभी करेक्ट नहीं हूं,
और अगर मैं करेक्ट हूं तो मेरी स्पीड अच्छी नहीं है. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? सो वही ना, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. फटाफट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू राइट द वर्ड फैंटास्टिक? मुझे बताओ कितने लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड लिखना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस वांट टू नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर 7? Guys, point number, I know people are here to write, they are saying incredible. Point number 7 लिखो. 6 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मास्टरिंग इंग्लिश फ्लुएंसी इज ऑल अबाउट, ये तो हमने कर ही लिया, प्लेइंग विद द न्यू गेम्स ऑफ द फॉर्मेशन. ये जो मैंने आपको बताया अभी फॉर्मेशन शीट का, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टरिंग इंग्लिश फ्लुएंसी इज ऑल अबाउट playing with the new game formations, not about learning old rules. And I8 क्या था? I8 में मैंने आपको ये चीज समझाई है. Now I got the right meaning of fluency. पहले करेक्ट होना है, क्विक होना है, तब कॉन्फिडेंस मिलेगा. आया? यस और नो? राइट, ठीक है. आया? सबको ये चीज समझ में आई है कि पहले करेक्ट होना है, फिर फास्ट एंड क्विक होना है, एंड कॉन्फिडेंट होना है. आया? I7 I8 समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? Great it, like got it. How many of you guys are now want to feel unbelievable? Because the ninth point is coming, which is absolutely right, which is absolutely going to blow your mind over. फटाफट सीखते हैं, right? फटाफट सीखते हैं. चलो इधर आओ, देखो इतना समझ में आया. और एक लॉजिक ना मेरा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस. आपको वो नहीं करना जो आप चाहते हो. पहले एक लॉजिक समझना, आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंसी में वो नहीं करना जो आप चाहते हो, आपको वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है. आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी मदर का बर्थडे है. अब मैं एक रेजर यूज करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे. क्या मैं वो रेजर मम्मा को गिफ्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो. क्योंकि वो जो गिफ्ट है वो मेरे काम का नहीं है. मैं अपनी मदर को वो गिफ्ट करूंगा जो मेरी मॉम के काम की चीज होगी. मे बी अ लिपस्टिक, मे बी अ मिरर, मे बी एनी लाइक मेकअप थिंग. यस और नो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? यस और नो? तुम लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो? तुम इंग्लिश में उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए. और तभी तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. तुम्हें इंग्लिश में उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जो फ्लुएंसी को चाहिए. अब आप समझना, ये लॉजिक को दोबारा मैं समझाता हूं. व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? अरे अमन यार, मुझे तो अपनी इंग्लिश फटाफट क्विक एंड कॉन्फिडेंट करनी है. उसके लिए मैं तो 30,000% एफर्ट्स भी देने को तैयार हूं. आप दे भी रहे होंगे, पर तुम अपनी इंग्लिश को करेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए फ्लुएंसी नहीं आ रही है. रादर फ्लुएंसी ये कहती है कि यार तू अपनी इंग्लिश को पहले करेक्ट कर ले, करेक्ट कर ले, उसके बाद क्विक एंड कॉन्फिडेंस के लिए 30% एफर्ट्स भी देगा ना, आई विल कम. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे? यस और नो? आया? समझ में आया? समझ में आया? यही तो तुम गलती कर रहे हो. तुम्हें वो नहीं करना जो तुम चाह रहे हो, राइट? तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम्हें वो मिल रहा है जो तुम चाह रहे हो. द आंसर इज नो. तुम्हें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है. अभी इसको नोट्स में लिखो, इनक्रेडिबल पॉइंट आई नंबर 9. सब लोग लिखेंगे ये वाला पॉइंट, राइट? हम 6 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, 7 एंड 8 डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इज द मैटर ऑफ I9. आई डोंट हैव टू डू, राइट, व्हाट आई वांट. मुझे वो नहीं करना जो मैं चाहता हूं. रादर I have to do what fluency wants, which is correct in English first, then comes quickness and confidence. ये सबसे बड़ी गलती है. आया समझ में? सबको समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइकिंग इट? I9 प्रोसेसर है, समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ. लाइक दैट, I don't have to do what I want, rather I have to do what fluency wants, which is to be correct in English first, then comes क्विकनेस एंड कॉन्फिडेंस. समझ में आया ये वाला पॉइंट? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट है, अब कितने लोग I10 के लिए तैयार है? ये I10 गाड़ी नहीं है, ये इनक्रेडिबल पॉइंट है. कितने लोग I10 के लिए तैयार हैं मुझे बताओ? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर I10 नाउ? ये I10 गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं मिलने वाली है, राइट? ये पॉइंट मिलेगा विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. चलो अब मैं तुम्हें ताफ प्रिंसिपल समझाता हूँ. यू गाइस आर गोना लव इट. चलो, इतना समझ में आया यार? अब ना आज हम पूरे इस पर्टिकुलर सेशन को ना, लेट्स गो फॉर द समराइजेशन विद इन 5 मिनट्स, राइट? अब हम समराइजेशन करते हैं ना, आप लोगों को पता लगेगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें डी टेक्निक बताई, टाइम एंड सेंस बताया, उसका यूज क्या था. दिस इज व्हाट इट इज. चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब समराइज करते हैं. यार इंग्लिश की समराइजेशन ये होगी, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री
कि you guys want to write error free and correct English like WhatsApp chatting, email and letter writing, yes or no? हमारा ये गोल हो सकता है ना कि यार अमन, I want to correct grammatically correct या error free English. What would be the second goal? That Aman, I want to talk fluently over the call. कि यार मैं जब फोन पे बात करूं ना तो मैं ढंग से कर पाऊं. अभी क्या होता है कि when I'm having a word with someone and the other person, or it could be a boy or a girl, if he or she is replying to me in English, I have a lot of fear. I have a lot of jitters in my stomach. I'm not able to reply him or her in English. This might be a problem for you guys. So these are going to be the three major goals. Yes or no? Aman, I should be able to write in English properly. I should be able to talk fluently over the call. And the third point is going to be very common, that Aman, I should be good enough so that I can speak in front of people. Yes or no? These are going to be your three goals. Great. Now, अब पॉइंट पे आते हैं, इन तीन गोल्स को अचीव कैसे करना है. एक दिन में ये नहीं होता सारे तीन गोल्स आ जाएंगे. इन ऑर्डर टू मेक इट शॉर्ट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट, कि इसको ना हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इन शॉर्ट बात ये है, इंग्लिश में टेक्स्ट को ठीक करना है, ऑडियो को ठीक करना है, वीडियो को ठीक करना है. हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? किसी का गोल नंबर 1 हो सकता है, किसी के तीनों हो सकते हैं, किसी का लास्ट वाला हो सकता है, किसी का सेकंड एंड थर्ड हो सकता है. अब मेरे एक लॉजिक को समझना है, एंड यू गाइस आर गोना लव दैट पर्टिकुलर पॉइंट. चलो अपना स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि करना कैसे है. अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट टेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट टेक्स्ट, आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग टेक्स्ट करते कैसे हैं. मैं आपको करके दिखाता हूं. लेट्स सपोज दिस इज माय फोन एंड आई हैव टू राइट वन मैसेज फॉर यू. राइट, मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज लिखना है, एंड मैं किस तरीके से लिखूंगा, जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, मतलब आप इस चीज को समझना, मुझे कुछ ना लिखना है आप लोगों के लिए, मैं इस तरीके से लिखूंगा, एंड आई होप आप भी इस तरीके से लिखते होंगे. अब मुझे आपको लिखना है, चलो यार लिखना स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, मतलब मैं इनको लिखना चाहता हूँ कि हेलो एवरीवन तक तो ठीक है. अब मैं इनको लिखना चाहता हूँ कि मतलब आई होप कि ये सब लोग अच्छे होंगे. तो क्या लिखूंगा मैं, हेलो एवरीवन, यहाँ तक तो ठीक है. आई होप यू आर डू ग्रेट. यार डू ग्रेट सही है या डूइंग ग्रेट? डू ग्रेट होता है यार. यार एक बारी गूगल कर लेता हूँ, एक सेकेंड. अरे नहीं यार, ये लोग कैच कर लेंगे, गूगल तो मैं कर ही नहीं सकता. आई होप यू आर डू ग्रेट, डूइंग ग्रेट. अरे यार, डूइंग ग्रेट सही लग रहा है, वही लिख दूं क्या? यार एक सेकेंड, गूगल स्पेलिंग. अरे यार छोड़ ना, क्या करना है. डू ग्रेट ही सही है. नहीं यार, डूइंग ग्रेट होगा, चल ठीक है. बैकस्पेस बैकस्पेस बैकस्पेस. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सेंड कर दूं क्या? अरे यार कहीं गलती ना हो जाए. हेलो एवरीवन तक तो ठीक है. आई होप, आई होप टू आएगा. नहीं, आई होप यू आर. यार उस दिन एक वर्ड पढ़ा था ना, वो ग्रेट की जगह फैबुलस. अब फैबुलस की स्पेलिंग गूगल कर लेता हूँ, एक सेकेंड. अरे नहीं यार, ये पकड़ लेंगे. आई होप, अरे छोड़ना है यार, इतना टाइम हो गया, एक मैसेज भी नहीं लिखा, वहां से 3 रिप्लाईज आ गए हैं. सेलेक्ट ऑल डिलीट, हिंदी में ही लिख लेता हूँ. हेलो एवरीवन कॉमा, मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे, सेंड. अबे यार इंग्लिश कब मैं सीखूंगा यार, कल से सीखना स्टार्ट करता हूँ यार. छोटे छोटे सेंटेंसेस भी नहीं आ रहे. ग्रामर की बुक कहाँ है यार? यूट्यूब इंग्लिश. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस सिचुएशन? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? एग्जाम्पल अब समझो. एग्जाम्पल अब आप समझना, ये वाली मैंने आप लोगों के सामने वाली चीज का एग्जाम्पल क्यों दिया. इस चीज से एक तो चीज बिल्कुल गारंटीड ये होती है कि जब मैं लिखूं, आप लिखो, कोई भी लिखे, when we guys are doing the text part, we all have around 5 or 10 seconds extra. Yes or no? Do you guys agree? We all have around 5 or 10 seconds extra to think. चाहे मैं लिखूं, आप लिखो, शाहरुख खान लिखे, विवेक ओबराय लिखे, सलमान खान लिखे, प्रीति जिंटा लिखे, अरे नरेंद्र मोदी भी लिखे, विराट कोहली भी लिखे, हम सब लोगों के पास जब हम लिखते हैं, वी ऑल हैव 5 or 10 seconds extra. But when it comes to audio and video, when it comes to audio and video, we have no time. Imagine a fact that I'm having a word with you guys in English, and the moment I'll stop, you need to reply to me in English. If you will think for 5 or 10 seconds in audio and video, what I'll feel कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती. हाँ या ना? बात में दम है. लिखने के लिए तुम 5 से 10 सेकंड ले लोगे तो मुझे चल जाएगा कि ठीक है यार, कुछ कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन इतना जल्दी रिप्लाई नहीं दिया जाता. पर if I am having a WhatsApp call, if I am having a WhatsApp video call with you, if I am having a word with you in person,
अगर तुमने 5 से 10 सेकंड ले लिए सोचने के लिए, तो मुझे क्या लगेगा, इंग्लिश नहीं आती। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? अब यहां से सीखने वाली बात क्या है, आप लोग समझना। आप सब लोग ना एक क्वेश्चन के पीछे टोटली मैड हो कि हाउ टू स्पीक क्विक एंड कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हाँ या ना? यू गाइस वांट टू नो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर? व्हाट इफ आई टेल यू ये तुम्हारी सोच ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है यार। अब ना मैं तुम्हें तुम्हारा एक्चुअल लेवल बताऊंगा कि तुम लोगों को करना क्या है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, चैट्स को ओपन करना है। द क्वेश्चन वुड बी होम, सब लोग मुझे इसका आंसर दो पहले। कैन यू राइट करेक्ट इंग्लिश और नॉट? मतलब मान लो अगर मैं तुम्हें 10 सेंटेंसेस देता हूं, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 90% करेक्टली लिख लेंगे? मुझे बताओ। नरेक, मैं बोलने की अभी बात कर ही नहीं रहा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन करेक्टली राइट? 90% कितने लोग राइट लिख लेंगे? मुझे लिखो यस या नो, फटाफट। 90% कितने लोग करेक्टली लिख लेंगे? मुझे बताओ फटाफट। गिव मी द आंसर इन यस या नो, ऑनेस्टली आंसर देना। बिकॉज अगर आज आपने झूठ बोला, इंग्लिश विल नेवर कम टू यू। चलो चलो मुझे बताओ, एवरीवन लेट मी नो। मुझे बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि आपको अगर मैं कुछ लिखने के लिए दूं, चैट्स को एक बार ओपन कर दो। आई वुड रियली वांट टू सी दैट वेदर द पीपल आर एबल टू राइट एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स और नॉट। फटाफट मुझे बताओ वेदर यू गाइस आर एबल टू राइट इंग्लिश और नॉट। आप लोग बाकियों के भी रिप्लाईज एक बार ही देख पाओगे, राइट? सब लोग देख पाओ, चैट्स को बंद कर दो। आपने एक चीज नोटिस की कि 90% पीपल आर सेइंग 90% पीपल आर सेइंग नो एंड ओनली 10% पीपल आर सेइंग यस, एंड बाकी कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू वन ताफ प्रिंसिपल, एंड तुम्हें सारी चीजें सीक्वेंस में समझ में आ जाएगी। इंग्लिश बोलना चाहते हो, एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, क्या? ताफ प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल गोज लाइक टेक्स्ट ऑडियो वीडियो। ये इस तरीके से प्रिंसिपल चलता है। तुम्हें पता है टेक्स्ट क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है? पहली चीज तो ये है कि इमेजिन अ फैक्ट, दिस इज यू। आज जब मैंने तुम लोगों से पूछा कि क्या तुम ढंग से टेक्स्ट कर लेते हो, तुम लोगों ने आंसर दिया नो। तो एक तो चीज मैं गारंटी से बता सकता हूं कि जो 90% लोगों ने आंसर नो दिया है ना, अभी आप लोग ऑडियो में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, वीडियो में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। यस और नो? ऑडियो एंड वीडियो में भी तुम्हारा आंसर नो होगा, हाँ या ना? पॉइंट की बात यह है, कितने लोग एग्री करेंगे कि तुम लोगों को 90% जितने भी लोगों ने नो लिखा है, तुम्हारा ऑडियो एंड वीडियो में भी आंसर नो होगा। अगर तुम्हारा तीनों जगहों पे आंसर नो है, तो इसका मतलब तुम्हारे प्रोसेसर में थोड़ी सी गलती है। तुम्हें स्मार्टली इंग्लिश को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आप एक मेरी लॉजिकल बात समझना। आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस वे। यार देखो, अब आप मुझे बताना कि आप लोग, यही तो रीजन है कि तुम लोग फ्लुएंट नहीं बन पा रहे। लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस वे। सो द पॉइंट इज, इमेजिन अ फैक्ट, दिस इज यू एंड ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है। नाउ द पॉइंट इज, जब भी आपको टेक्स्ट करने का मन करता है, मतलब जब भी आपको कुछ लिखने का मन करता है, रियलिटी क्या होती है कि मैं 5 से 10 मिनट, मान लो मैं 5 मिनट सोचता हूं, बहुत सोचता हूं कि मैं सही लिखूं। रियलिटी क्या है कि मैं सही नहीं लिख पाता। दिस इज योर रियलिटी, यस और नो? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? दिस इज आवर रियलिटी। अब पंगा पता है क्या है कि हम लोग ना अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा बोलो, और मैं ट्राई करता हूं डायरेक्टली स्पीक करने का। स्पीक मतलब क्या होता है? वही, या तो मैं फोन पे किसी से बात करने की कोशिश करता हूं, या मैं वीडियो वीडियो बेसिकली मींस मैं लोगों से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, फेस टू फेस। यार एक सिंपल सा लॉजिक ये है, बायोलॉजिकल फैक्टर समझना। आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान, एंड देखा जाए टेक्स्ट एक इजी चीज होती है, हाँ या ना? लिखना इजी है, बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे एक बात बताओ कि जो इंसान एक टेक्स्ट जैसी इजी चीज 5 मिनट में नहीं कर पा रहा, तो जब हम उस इंसान को बोलने के लिए बोलेंगे, आपको पता है स्पीक करने में हमारे पास 0 सेकेंड्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो इंसान 5 मिनट में टेक्स्ट जैसी इजी चीज नहीं कर पा रहा, क्या वो 0 सेकेंड्स में स्पीक जैसी डिफिकल्ट चीज कर पाएगा? द आंसर इज नेवर। आपको समझ में आया व्हाई यू गाइस आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश? बिकॉज योर पैटर्न्स आर रॉन्ग। आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। लेट्स सपोज दिस इज योर प्लानिंग। आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे कोई स्पीकिंग पार्टनर्स मिल जाए और मैं उनके साथ बोलूं और मुझे इंग्लिश आ जाएगी।
पर कितने लोगों ने ये चीज का रियलाइजेशन किया कि तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे कॉलेज में इंटरव्यूअर वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, पर एज तुम्हें आदत नहीं है इंग्लिश बोलने की तो तुम डर जाते हो। हाँ या ना? समझ में आया ना? दिस इज व्हाट इट इज। अब आप समझो, आप लोग अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस इस तरीके से स्टार्ट करते हो, आपको लगता है एक बारी मुझे लोगों के सामने बोलना आ जाए, अरे ऑडियो एंड टेक्स्ट तो मैं कर ही लूंगा, एक बारी मुझे बोलना आ गया ना तो मैं फोन पे तो बात कर ही लूंगा, लोगों को तो लिख ही तो लूंगा। दिस इज व्हाट यू गाइस थिंक। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। ऐसे नहीं करना। टफ से इजी चीज नहीं करनी, इजी से टफ चीज करनी है। समझ में आया? इन तीनों में सबसे टफ कौन सी चीज है जो तुम्हें लगती है? वीडियो वीडियो वीडियो। तुम यहां से शुरुआत क्यों कर रहे हो रे? क्यों कर रहे हो रे? कौन कह रहा है कि तुम्हें वीडियो 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 करनी है? कौन कह रहा है तुम्हें लोगों से सामने बात करने का? बायोलॉजिकल तुम चेंज नहीं हो सकते ना। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? द पॉइंट इज यू नीड टू यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लाइक दिस वे। सबसे पहले तुम्हें दिस इज द राइट अप्रोच। आया समझ में? दिस इज द राइट अप्रोच। एंड व्हाट इफ आई टेल यू 90% इंडिया इज टॉकिंग अबाउट दिस अप्रोच। लोग आपको कन्विंस करेंगे, ओ वी विल गिव यू स्पोकन इंग्लिश पार्टनर्स। तुम पागलों की तरह बोलने की कोशिश करोगे, नहीं बोल पाओगे कभी भी। हाँ या ना? आया सबको समझ में? सबको ये चीज समझ में आ रही है? व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग अप्रोच? आपको इजी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपका टेक्स्ट ठीक हो गया उसके बाद ऑडियो को ठीक करना वुड बी इजी। अगर ऑडियो एंड टेक्स्ट ठीक हो गया वीडियो विल बी सुपर इजी। तुम्हारे मेथड्स गलत है, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू गाइस आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश। समझ में आया? यस और नो? सबको ये चीज समझ में आ रही है? मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? समझ में आया? नाउ यहाँ पे फंडा क्या है समझने वाला? यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा क्या है? अब आप इस आई कितने, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ब्लोन अवे विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट? राइट, I10 का मतलब ही यही था। सब लोग समझना, I10 का सबसे बड़ा मतलब ही यही है। अब आप इस चीज को समझना। राइट, बायोलॉजिकली टू बी करेक्ट शुड बी योर फर्स्ट गोल टू मास्टर रिटन इंग्लिश। सबको ये चीज समझ में आई है? 10th पढ़ो पॉइंट, अभी अब यही पढ़ो। राइट, अभी आप यही पढ़ो, यही पढ़ो, इधर पढ़ो, इधर पढ़ो। बायोलॉजिकली टू बी करेक्ट my first goal is to master written English. Once I write correct English, then only I should think about spoken English. समझ में आया? सबको ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये 10th पॉइंट समझ में आया? यस और नो? लॉजिकल है। अब ना मैं और आने वाले पॉइंट्स तो हम कल करेंगे, बट उससे पहले एक चीज को समझो। माइंडसेट क्लियर हुआ? कितने लोगों की अप्रोच गलत थी मुझे बताओ? यस और नो? कितने लोगों की अप्रोच पहले गलत थी? अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को किस तरीके से स्टार्ट करना है। समराइज करते हैं। देखो, अब ना इफ आई टॉक अबाउट योर लेवल, कितने लोगों को ये लगता है कि तुम इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो? जितने भी लोगों को लगता है कि अगर तुम इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो तो तुम्हें, अब मैं आपको प्रॉपर एक प्लानिंग यहीं पे समझा देता हूं, इधर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो तो तुम्हें पहले इंग्लिश में करेक्ट होना है। क्विक एंड कॉन्फिडेंट पे ध्यान ही नहीं देना। आधे लोगों की गलती यही है कि वो करेक्ट तो है, करेक्ट तो नहीं है, उनको ये स्पीकिंग पार्टनर्स की लाइक वो बुक 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 होती रहती है कि ओ आई वांट स्पीकिंग पार्टनर्स, अरे मुझे प्रैक्टिस करनी है तभी तो मैं फ्लुएंट होऊंगा। टोटली बुलशिट अप्रोच। दिमाग में इंग्लिश डालनी है तभी मुंह से निकलेगी। वाटर टैंक प्रिंसिपल याद है ना? अगर तुम इंग्लिश में करेक्ट नहीं हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने टेक्स्ट को इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट एक तो इजी है, आसान है। आसान के साथ साथ जब मैं टेक्स्ट करता हूं मुझे सोचने के लिए 5 से 10 सेकंड भी मिलते हैं। तो पहले आसान चीजें कर लें। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? टफ किसने बोला करने के लिए? हो गया 20 साल कर लिया टफ, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हाँ या ना? कितने लोगों को रिलेटेबल बात लग रही है? टफ करके तू क्या करेगा? अभी तू टेक्स्ट तो कर नहीं पा रहा। सिंपल सी बात ही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं टेक्स्ट को इंप्रूव कैसे करूं? अब तुम्हें समझ में आया जो आज मैंने तुम्हें डी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस बताया? कितने लोगों को लगा कि हाँ यार, मैंने तुम्हें जैसी सेंटेंस दिया तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं अमन टेक्स्ट को इंप्रूव कैसे करूं? दिस इज द एग्जैक्ट मेथड विच यू गाइस नीड टू फॉलो टेक्स्ट को इंप्रूव करने के लिए। इधर देखना, दिस इज द मेथड। समझ में आया?
हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? आया समझ में? पूरी साइकिल क्लियर हुई? सेशन का लॉजिक समझ में आया? जब मैंने आपको डी टेक्निक बताई, टाइम एंड सेंस बताया, क्यों बताया? ताकि तुम्हें पता रहे वो अच्छा सेंटेंस है, इस तरीके से लिखना है। लव्ड इट? पूरा साइकिल क्लियर हुआ? अब मजा आया है ना? बिल्कुल नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसा। लास्ट में आपको पता चला कि पहली जो चीज हुई थी वो क्यों हुई थी। लव्ड इट? समझ में आया? दिस इज व्हाट इट इज। अब आप समझना, लॉजिक को समझना, क्योंकि कल मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें देनी है। इधर आओ, इधर समझो। एवरीवन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस वे, टी टेक्निक एंड टाइम एंड सेंस। कल हम ये सारी चीजें करेंगे। फॉर्मेशन शीट, आईज एंड ईयर्स की एक्टिविटी मैं थोड़ी बहुत करवा दूंगा तुम्हें, एंड स्पीकिंग पार्टनर्स हम देखेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर ज्यादा लोग इसके हुए तो हम इससे आगे चलेंगे, वरना हम ये चीजें भी एक्सप्लेन करेंगे। सबको ये इंग्लिश की जर्नी समझ में आई है? सबसे बड़ी स्टूपिडिटी, क्योंकि जब तक मैं इजी चीज नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं कंपैरेटिवली टफ चीज कर पाऊंगा क्या? क्योंकि इस ऑडियो एंड वीडियो में मेरे पास 0 सेकंड्स होते हैं। अरे जब तक तेरा दिमाग 5 से 10 सेकंड में नहीं चल रहा, 0 सेकंड्स में चलेगा क्या? कभी भी नहीं चलेगा। मजा आया? लॉजिक समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मजा आया है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर टुमारो? बिकॉज गाइस कल आप लोगों को मैं कल पढ़ाने नहीं वाला, कल तुम्हारा टेस्ट है डायरेक्टली। जो भी मैंने आज चीजें समझाई है, मैं डी टेक्निक समझाऊंगा, टाइम एंड सेंस थोड़ा सा समझा के, फॉर्मेशन शीट को डिस्क्लोज करके तुम लोग अपने लाइफ की पहली करेक्ट इंग्लिश लिखोगे एंड बोलोगे। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर दैट? लेट मी नो कितने लोग एक्साइटेड हैं।